अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। આપણે 2-3 દિવસ પહેલા સત્સંગમાં પેલું આપણે સમય તત્વ સનાતન છે, પછી કાળ અને કાળાણું એની વાત થઈ હતી, બરાબર? તો પહેલા સમય તત્વ સનાતન છે, પછી કાળ આપણે જે કીધું એ પ્રમાણે દ્વાપર યુગ ત્રેતા યુગ એ રિલેટેડ આપણે એવી રીતે સમજવાનું. પછી કાળાણુમાં આપણે એમ કીધું કે સવારેના કાળાણું, પછી સાંજના સંધ્યાના, એવી રીતે. તો હવે મારો પ્રશ્ન એ છે સ્વામીજી કે કાળાણું આપણે જે કોઝની ઇફેક્ટ આવે અને આપણે ઉદય કર્મ જ્યારે રાગવિશ કર્યા હોય ને જ્યારે પાકે ત્યારે આપણે જે પેલા સમવાય કારણ છે ને એમાં દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ ભાવ ભાવી આવે છે. તો એમાં જે કાળ આવે છે એમાં આ જ કાળાણુઓ વર્ક કરે છે આ અવસ્થાઓને, જે એમાં જે કેટાલિસ્ટ તરીકે. કહો જી. કાળ તત્વનો મતલબ શું છે કે તમારો પોતાના કર્મના ભોગવટાનો કાળ. જી. અને કાળાનું તો કોમન હોય. અચ્છા, કોમન. દાખલો આપો, ધારો કે અત્યારે રાત છે, એ રાતમાં કોઈને સુખે મળે ને કોઈને દુઃખ મળે, પણ કાળાનું તો એક જ હોય ને. એક જ. અચ્છા. કાળાનું એ અવસ્થા જેનાથી બની છે, ધારો કે અત્યારે રાત છે, એને અવસ્થા કહેવાય. એ અવસ્થા જેનાથી બની છે એને કાળાનું કહેવાય. એ કાળાનું બધાને ભોગવટો અલગ અલગ પ્રકારનો હોઈ શકે. કાળાનું શબ્દ કાળને લાગુ પડે છે, વ્યક્તિને નહીં. અને વ્યક્તિને જે કાળ સમય વાપર્યું છે એ એનો ડ્યુ ટાઈમ કહેવાય. ડ્યુ ટાઈમ. અને સતયુગ કળયુગ એ બધું પણ કાળ જ કહેવાય. એ કાળાનું કહેવાય. આપણને લાગે કે આ સતયુગ ભગવાન મહાવીરનું નિર્વાણ થયું, પછી તરત કળયુગ શરૂ થયો, તો શું બદલાયું? તો કે દિવસ રાત બદલાયા? તો કે નહીં, કાળાનું બદલાયા. પેલો સમય તો હંમેશા વર્તમાન જ હોય, પણ કાળાનું બદલાય એટલે એનું ફંક્શન બદલાઈ ગયું હવે. હા, જેમ આપણે રાત પછી સવાર થાય, પછી બપોર થાય, પછી સાંજ થાય, પછી રાત થાય, એમ બધા કાળાનું બદલાયા કરે. એ અવસ્થા છે. અને અવસ્થામાં વ્યક્તિગત ભોગવટો બધાને અલગ અલગ પ્રકારનો હોઈ શકે. ઓકે, હા, સમજી. બસ એટલે એ જ મને એવું હતું કે કારણો જે અવસ્થાના ભોગવટા આવે રાગદ્વેષના ઉદય કર્મ, ત્યારે આ કારણો વર્ક કરે ને એ જુદું છે. સમજાય ગયું. બરાબર. એ કાળ શબ્દ એટલા માટે વાપર્યો છે કે તમારા એ કાળમાં તમારા કર્મનો ભોગવટો છે, એને કાળ શબ્દ. એટલે ગમે તે ટાઈમ હોય, માણસ જેમ દિવસે જન્મે ને મરી શકે એમ રાતે જન્મે ને મરી શકે. એને સીધું કાળ તત્વ નથી, પણ જન્મ્યો ત્યારે એને આ કાળ હતો ને મરી ગયો ત્યારે આ કાળ છે, એવું આઈડેન્ટિફાય કરવા માટે. ઓકે, હા, સમજાઈ ગયું. બરાબર, બહુ સરસ. અને એક નાનો બીજો ક્વેશ્ચન સ્વામીજી, કારણ કે આપણે મહાવીર સ્વામીની પેલી દેશનાનું જે આપણે કહે છે ને કે પ્રથમ દેશના નિષ્ફળ ગઈ હતી, તો એમાં મારે ખાલી એટલું જાણવું છે કે એ દેશના નિષ્ફળ ગઈ એટલે કેવી રીતે? કોઈએ ક્વેશ્ચન ના કરે એ રીતના, કે કોઈ સમજ્યું નહીં, કે કોઈ આવ્યું નહીં? દેવોએ જે આપેલી આમંત્રણ તેમાં ના, નિષ્ફળ ગઈ એટલે પ્રશ્ન ના પૂછ્યો કે સમજ્યું નહીં, એવું નહીં. હંમેશા તીર્થંકર જ્યારે દેશના આપે ને, પછી દેશનાના અંતે ઘણા બધા જીવો તરત જ ભગવાનની દેશના સાંભળીને વૈરાગ્ય પામીને દીક્ષા લઈ લે. અને દીક્ષા લે એટલે પહેલી જ દેશનામાં, સાંભળજો, પહેલી જ દેશનામાં એક સાધુ ને સાધ્વી તો મિનિમમ થાય. શું થાય? એટલે એક પુરુષ અને એક સ્ત્રી દીક્ષા લે, આ મિનિમમ વસ્તુ હોય. અચ્છા. અને પહેલી જ દેશનામાં ભગવાન ચતુર્વિધ સંઘની સ્થાપના કરે, જેમાં સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવક અને શ્રાવિકા આવી ગયા. એટલે નોર્મલી પહેલી જ દેશનામાં બને.
ત્યારથી ધર્મની સ્થાપના થઈ જાય અને સંઘની પણ સ્થાપના થઈ જાય. સમજાય છે? પણ ત્યાં પહેલી ભગવાન મહાવીરની પહેલી દેશનામાં આ ન બન્યું. ઓકે, બરાબર. હા હા. એટલે કોઈ આવી રીતના સાધુ સાધ્વી ના થાય અને કોઈ શ્રાવક શ્રાવિકા હોય એ રીતના નિષ્ફળ રહે. હા, નિષ્ફળમાં બીજું કશું નહીં. ભગવાનને કોઈ ફેર નથી પડતો એમાં. એમની જ્ઞાન દશાને કોઈ ફેર નથી પડતો. આનું નામ જ ઉદય કર્મ ઇઝ ઇક્વલ ટુ કુદરતી રચના. બરાબર. બસ એટલે આ એ સમજવું હતું કે નિષ્ફળ ગઈ એટલે કેવી રીતે, એમ તો આ રીતના. બાકી ભગવાનનું તો શું નિષ્ફળ ને સફળ, એનું તો કેવળ જ્ઞાન થઈ ગયું છે. હવે તો આયુષ્ય કર્મ બાકી છે, એ પ્રમાણે પૂરું કરવાનું છે. એટલે એમના માટે કઈ પુરુષાર્થ સંજોગો કોઈ લેવા દેવા નથી. હિસાબ પૂરો કરવાનો વન વે. નવ તો ઊભું થવાનું નથી. અને સ્વામીજી એ ચારિત્રમો તો હોય જ ને, તીર્થંકરોને છેલ્લે આયુષ્ય કર્મ ડિસ્ચાર્જ કહેવાય. ડિસ્ચાર્જ હોય ને, કારણ કે એકવાર એક સત્સંગમાં આપે એવું કીધેલું, એટલે એક સત્સંગમાં એવું સાંભળ્યું હતું કે જ્ઞાનીઓ ખટપટિયા હોય એટલે એ લોકો જીવને પમાડવા માટે ખટપટ કરે, સમજાવે બધું. તીર્થંકરો તો મૌન હોય. એટલે એમ કે ચારિત્રમો આપણે જ્ઞાની પુરુષોને તો હોય જ કે કેમ કરીને બધા જીવો પામે, અને તીર્થંકરો તો મૌન હોય એટલે બોલે જ નહીં, પણ છતાં એમને ડિસ્ચાર્જમાં ચારિત્રમો તો હોય જ ને. એ એમનું લાઈફ છે, એ ચારિત્રમો જ છે ને, પણ એ ડિસ્ચાર્જ ચારિત્રમો. ડિસ્ચાર્જ પણ એમ કે પમાડવા માટેના પ્રયત્ન ન કરે, બોલીને કે જેમ જ્ઞાનીઓ ખટપટ કરે. એમનામાં ડુઅરશિપ ઓનરશિપ ના હોય. જી હા. એ ટોટલી ઓબ્ઝર્વર હોય. Observer of mind, speech and action and all kind of circumstances realized through the five senses. એ બધાના ઓબ્ઝર્વર હોય, ના ડુઅર હોય, ના ઓનર હોય, ના સફરર હોય. એનાથી બિયોન્ડ હોય. બિયોન્ડ ખ્યાલ આવી ગયો? એને કોઈ લેવા દેવા જ ના હોય. જેમ આપણે એક વ્યક્તિની બીજી વ્યક્તિ સાથે જેવું ડિસ્ટન્ટ છે, એવું એમને આત્મા અને બોડી સાથે ડિસ્ટન્ટ હોય, અને બોડીના ધર્મો સાથે બોડીના ધર્મો એટલે શું? આ મન વચન કાયાની અવસ્થા અને ફાઈવ સેન્સીસથી અનુભવાતી સમગ્ર સૃષ્ટિ, આ બધું એમનાથી સેપરેટ હોય. સો એના ઓબ્ઝર્વર હોય, ડુઅરે ના હોય, ઓનર ના હોય, અને સફરરે ના હોય. ત્રણમાંથી કશું ના હોય. ટોટલી સેપરેશન. એનું નામ જ કેવળ જ્ઞાન. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. स्वामी जी. जय सच्चिदानंद. स्वामी जी, आपने जो ये बताया है कि भाई मैं शुद्धात्मा हूँ और बाकी समग्र सृष्टि को जो भी मन वचन काया और उससे अनुभव में जो आती है उसको मैं कुदरती रचना के रूप में देखना है. यस. तो इसमें जो मैं शुद्धात्मा हूँ इसके ऊपर जब विचार करते हैं तो ये बेसिकली लगता है कि भी जो है जो कुछ भी एक्सपीरियंस होता है, जो कुछ भी हम मन बुद्धि चित्त अहंकार से या बाहर इंद्रियों से जो भी अनुभव करते हैं वो मैं हूँ, तो वो सब अनुभव होता है. तो जो चेतना है, मेरा जो नेचर है, वो चेतना जो है वो मेरा स्वभाव है. और जो भी दुख अनुभव होता है, सुख अनुभव होता है, वो भी मैं हूँ, तो वो सब अनुभव होता है. राइट. तो उस हिसाब से मैं शुद्धात्मा हूँ, ये थोड़ी बात क्लियर होती है. लेकिन इसमें फिर जो है देखते हैं तो भाई जो मैं उसको कुदरती रचना देखता हूँ या नहीं देखता हूँ, वो भी मैं देखता हूँ तो भी मैं शुद्धात्मा हूँ, नहीं देखता हूँ तो भी शुद्धात्मा. यस. तो इसमें ये फिर जो है कुदरती रचना उसको देखना है, ऐसा फिर जरूरी है? क्यों जरूरी है फिर उसके बाद? क्योंकि मैं अगर शुद्धात्मा हूँ तो जो भी अवस्था है जैसी भी दिख रही है उसका मैं मात्र ज्ञाता दृष्टा हूँ, मेरे कारण वो वैसे देख रही है. तो उसमें फिर इसमें कुदरती रचना देखना फिर जरूरी क्यों है? और सेकंड थिंग ये है कि अगर कुदरती रचना देखना है तो उस कुदरती रचना में का क्या मतलब क्या है? कुदरती रचना, एक तो आपने बताया कि भी वो मैं उसका क्रिएटर नहीं हूँ, उसको सस्टेन करने वाला नहीं हूँ, ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर. यस. वो सब बात समझ में आती है. राइट. लेकिन उसमें एक और चीज आती है कि जो है जो हम लोग के पहले योग वशिष्ठ है उसके अंदर सबके अंदर बताया कि भी जो है ये जगत जो है ये मिथ्या है. तो ये लगता है कि रियल है, लेकिन जैसे
स्वप्न के अंदर आपको स्वप्न रियल लगता है, लेकिन जब उठते हैं तो वो स्वप्न रियल नहीं है। इसी तरह से जब हम उठते हैं, जब वेकिंग स्टेट के अंदर हमारी इंद्रियां काम करती है, हमारा मन बुद्धि काम करता है, तो ये बाहर की जो स्पेस है, बाहर का जो कुछ भी संसार है, ये खड़ा हो जाता है। और जो जैसे स्वप्न के अंदर हमारे मन के अंदर स्पेस होती है, मेंटल स्पेस जिसको बोलते हैं, और जो वेकिंग स्टेट है उसके अंदर इंद्रियों की वजह से, मन बुद्धि चित्त अहंकार की वजह से बाहर की स्पेस खाली ये दिखती है। बाहर जो कुछ भी हमको, जो उसको हम मानते हैं कि ये रियल है, ये रियल है नहीं, लेकिन ये रियल की तरह दिखता है। तो कुदरती रचना को वो अनरियल है, अनरियल मान के देखना है, या कैसे देखना है उसको कुदरती रचना? यस यस यस, ओके, आपका क्वेश्चन मैं समझ गया। सिंपल बात ये है, आत्मा के सिवा जो कुछ भी है, चाहे मन वचन काया कहो, मन वचन काया की अवस्था कहो, या 5 सेंसेस से अनुभव में आती पूरी सृष्टि कहो, इसमें से कोई भी हिस्सा कुदरती रचना से बाहर नहीं है। कोई भी, एनीथिंग। अभी कुदरती रचना है, मगर कुदरती रचना क्यों है, कैसे है? तो क्या कुदरत और कुदरती कानून से कुदरती रचना है। तो कुदरत क्या मतलब? 6 इटर्नल एलिमेंट्स जिसे पूरा ब्रह्मांड बना है, 6 इटर्नल एलिमेंट्स जिसे मन वचन काया बना है, और 6 इटर्नल एलिमेंट्स जिससे यह अवस्थाएं बनी है। यानी ब्रह्मांड में 6 तत्व के अलावा कुछ नहीं है, और वो 6 तत्व कुदरती कानून से काम करते हैं। कौन से कानून से? दिन होना, रात होना, पूनम होना, अमास होना, भर्ती होना, ओट होना, और हमारे कर्मों का फल मिलना, ये सब कुदरती कानून है। यानी दुनिया किसी की मर्जी से नहीं चलती है, कुदरत के कानून से चलती है। और कुदरत और कुदरती कानून से बनी हुई सभी अवस्था जो हम 5 सेंसेस से फील करते हैं, इंक्लूडिंग अवर माइंड, स्पीच एंड एक्शन टू, ये सब कुदरती रचना है। अगर ये कुदरती रचना नहीं देखते हैं, मतलब आपके पास सनातन सत्य का विजन नहीं है। बाकी जो भी विजन है वो रिलेटिव ट्रूथ है, और रिलेटिव ट्रूथ है तो राग द्वेष होना संभव है, मालिकी भाव होना, कर्ता भाव होना संभव है, सफरर होना संभव है। क्योंकि कुदरती ज्ञान नहीं है तो आपने ही भुगतान किया अच्छा बुरा, आपने ही अच्छा बुरा बोला, सोचा, एक्ट किया, आपने किया या दूसरे ने किया, यही लगेगा। बाय फैक्ट क्या है? बाय फैक्ट क्या है? कुदरती रचना। मगर कुदरती रचना में कुदरती रचना न देखने का कोई कारण नहीं है। एक भी कारण ऐसा है कि जो भी अवस्था हम जन्म से मौत तक मन वचन काया और उनके साथ बनी हुई अवस्था और 5 सेंसेस से अनुभव करती पूरी सृष्टि, उसमें एक भी अवस्था ऐसी है जो कुदरती रचना नहीं है। नहीं। तो हमको तो देखना ही है, और देखने से क्या होगा? डूअरशिप, ओनरशिप और सफरिंग स्टेटस खत्म हो जाएगा। मैं शरीर हूं, मैं शरीर को चलाने वाला हूं, और शरीर का जो भुगतान होता है वो मैं भुगतान करने वाला हूं। ऐसे अन्य व्यक्ति में भी यही दिखेगा, तो राग द्वेष तो होगा ही। अगर कुदरती रचना नहीं दिखा तो देखो, आपने शब्द अच्छा लगाया, ज्ञाता दृष्टा। तो ज्ञाता दृष्टा का मतलब क्या है? देखना और जानना। वो तो मिथ्यात्व को भी होता है, अज्ञानी को भी होता है। देखना जानना वो तो कॉमन वर्ड्स है ना। अज्ञानी भी देखनी जानती है। नहीं, वो बात मुझे समझ में आती है। मेरा प्रश्न वो नहीं है। मेरा प्रश्न ये है कि भाई, जो अगर मैं एक बार मैं इस चीज को समझ गया कि मैं शुद्धात्मा हूँ, जो कि चेतन स्वभाव का है, और जो कि ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है, जिसके कारण कि सारा कुछ जो कुछ भी शरीर में प्रोसेस होता है उसके कारण होता है। वो चेतना अगर नहीं है तो किसी चीज का भी हमें एक्सपीरियंस नहीं है, लाइफ ही नहीं है, लाइफ ही नहीं है। अब मेरा गोल है कि उस चेतना के अंदर रहना है और उस चेतना को पूरी तरह से एक्सपीरियंस करना है। तो शुरू में तो ठीक है, बात समझ में आती है कि जब हमको इस चीज की समझ नहीं थी, कुदरती रचना देखना है, वो करना है ताकि हम उस चीज के अंदर ना फंसे। लेकिन अब जब ये बात हमको समझ में आ गई कि जो है मैं वो चेतना हूँ, तो हर चीज जो भी मुझे एक्सपीरियंस में आती है, चाहे इंद्रिय से आ रही है, चाहे मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, चाहे कुछ
सही कर रहा हूँ। yes. तो वो उस चीज को मुझे ये देखना है कि मैं चेतन हूँ, तो मुझे उस चीज का एक्सपीरियंस हो रहा है कि ये गलत है या सही है, या मैं गलत है तो भी कर रहा हूँ, या सही है तो भी नहीं कर रहा हूँ या कर रहा हूँ। तो वो जो कुछ भी मुझे एहसास हो रहा है सब उस चेतन के कारण ही हो रहा है। बराबर है, बराबर है। इस अनुभव को और इस बिलीफ को मुझे फर्म करते जाना है। जो आपने बताया कि 0-1-0-1 बात बताई है कि नॉर्मली जो कुछ भी हमारा अवस्था है वो 0 है, और लेकिन वो 1 है तो उसकी वैल्यू है। तो जो भी 0 मुझे एक्सपीरियंस में आता है, चाहे वो मेरा अहंकार है चाहे बुद्धि है, उसके अंदर मुझे ये देखना है कि मैं वो 1 हूँ, तो वो एक्सपीरियंस हो रहा है। तो उसमें तो वो जब मुझे समझ में आ गया, उसके बाद फिर वो कुदरती रचना देखने के बाद फिर उसमें रह जाती है, या उसमें फिर उसकी जरूरत नहीं है उसके बाद। क्योंकि एक और चीज जो है ये बताइए कि दादा भगवान ने जो पहले जो सत्युग वगैरह के अंदर आगे 2 ही होती थी, रियल रिलेटिव की होती थी। मैं मतलब अपने मन से बता रहा हूँ, शायद ऐसा कुछ सुना है, कोई बात बोलिए। लेकिन अभी कलयुग के अंदर क्योंकि हमारा इतना जो हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारा कर्मों का प्रभाव ऐसा है, तो फिर हमको ये दूसरी आगे देनी पड़ी कि भाई संभावना निकाल करो, और व्यवस्थित शक्ति करता है, तो जिससे कि हमको दूसरे के ऊपर ये ब्लेम ना जाए कि भाई जो उसने किया मैंने किया, और उस मन के अंदर हमारा जो प्रेशर बना हुआ है, उस मन थोड़ा शांत हो तो हम उससे बियॉन्ड जो ट्रुथ है उसको देख सकें। शुद्धात्मा को मन शांत हो तो हम शुद्धात्मा को एक्सपीरियंस कर सकें। उसका पर्पस ये है कलयुग में वो देना। तो सेम थिंग, तो प्रश्न मेरा ये है कि अभी जब ये समझ में आ गया, जबकि खाली हर 0 के सामने मुझे एकड़ा बिठाना है, तो फिर वो कुदरती रचना अलग से देखने की जरूरत है क्या? और सेकंड थिंग, कुदरती रचना देखते हैं तो उसमें जैसे मैंने पूछा कि जो कुदरती रचना का मतलब क्या है, तो आपने बताया कुदरती रचना देखने से हमको वो ब्लेम और क्लेम नहीं रहेगा, मेरी जो है ये मेरा है तेरा है, मालिक की भाव, कर्ता भाव और सफरिंग, ये 3 स्टेटस आपके विजन में से निकल जाएगा। करेक्ट। लेकिन वो चीज जो है, अगर मैं इस वेकिंग स्टेट के अंदर मेरा जो एक्सपीरियंस है, ड्रीम स्टेट में तो मुझे पता है कि जो एक्सपीरियंस है वो रियल नहीं है, उसके पीछे मैं भागता भी नहीं हूँ। जब सब खत्म हो जाता है, मैं जग जाता हूँ, तो मुझे उस चीज के प्रति कोई रहता नहीं है कि मुझे वो चीज चाहिए थी और मुझे नहीं मिली या समथिंग। मुझे पता है वो अनरियल है। सो सेम थिंग, जो वेकिंग स्टेट में भी मेरा जो एक्सपीरियंस है, उसको मैं अगर ये समझ जाऊं कि भी जो ये खाली एक अपीयरेंस है, और जो है वो एक मेंटल प्रोजेक्शन है जो कि वेकिंग स्टेट के अंदर वैसा अपीयर करता है, वो वैसा रियल नहीं है, तो उससे भी मेरा जो इस जगत के प्रति जो हमारा ये जो कॉन्स्टेंटली संसार की चीजों के प्रति जो भागते रहते हैं, और उसमें हमारी जो चिंता होती है, वरी होती है, तो वो उसी तरह से वो उस तब भी उसकी ओनरशिप डूअरशिप सब खत्म उस अंडरस्टैंडिंग से भी हो जाएगी कि ये रियल नहीं है, खाली एक अपीयरेंस है जो कि रियल लगता है हमारी बुद्धि की वजह से, हमारे मन की वजह से, लेकिन एक्चुअली वो एक जैसे ड्रीम स्टेट अनरियल है, उसी तरह से ये वेकिंग स्टेट भी एक डिफरेंट ऑर्डर ऑफ अनरियलिटी है, जो कि खाली दिखती है रियल लेकिन है नहीं रियल। तो वो जगह समझ जाए तो भी हमारा वो सब ये खत्म हो जाएगा। तो हमको ये कुदरती रचना देखना है, उसको ये अनरियल है उस हिसाब से देखना है या कैसे देखना है? वही मैंने कहा कि और कोई सब्स्टिट्यूट लैंग्वेज का उपयोग करके आप देखने जाओगे, सब्स्टिट्यूट मेन लैंग्वेज छोड़ के, जैसे कुदरती कानून, कुदरती रचना, वो सनातन सत्य है, सभी एंगल से, ठीक है। हम उसको छोड़ के सब्स्टिट्यूट लैंग्वेज में जाएंगे तो फिर इंडिविजुअल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जैसे आपने कहा कि मेरा ये व्यू पॉइंट है, इससे मैं अलग रह सकता हूँ, दूसरा कहता है मेरा ये व्यू पॉइंट है, इससे मैं अलग रह सकता हूँ, तो ये व्यू पॉइंट हो जाएंगे। मगर जब कुदरत की बात करोगे तो 6 तत्व की बात आएगी, कुदरत की कानून की बात करोगे तो सनातन सत्य की बात आएगी, और कुदरती रचना का मतलब उससे ही बना हुआ है, और वास्तव में ये फैक्ट है। तो जो फैक्ट है, क्योंकि अभी आपने कहा कि क्यों देखना जरूरी है, मैं शुद्धात्मा हूं, समझ में आ गया, और बाकी सब रिलेटिव है, वो भी समझ में आ गया, और रिलेटिव की वैल्यू 0 है, अच्छी बात है, वो गलत नहीं है। मगर सनातन सत्य क्या है? 0 तो आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया। सनातन सत्य क्या है? कुदरती रचना। और जहां तक अज्ञान है वहां तक कुदरती रचना देखना, उसी से ही अज्ञान जाएगा। देयर इज नो एनी अदर वे। हमको अज्ञान निकालना है। कौन सा अज्ञान निकालना है?
वैल्यू ऑफ रिलेटिव ट्रूथ फ्रॉम आवर विजन, वी हैव टू इरेज। और वो कैसे निकलेगी? जब कुदरती रचना कहोगे तो तुम्हारा तो कुछ है ही नहीं, ना ओनरशिप है, ना डूअरशिप है, ना सफरर है। क्यों? क्योंकि कुदरती रचना है। तो फिर रागद्वेष होने का या अज्ञान खड़ा होने का सवाल ही नहीं है। और जो रिलेटिव सत्य लेकर आए बिलीफ के रूप में, वो अपने आप डाइल्यूट हो जाएंगे, क्योंकि यू यूज द यूनिवर्सल ट्रूथ साइंस। तो निकलेगा तो जरूर डिस्चार्ज के रूप में, मन बुद्धि चित्त अहंकार जो डिस्चार्ज है, मगर वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, कैरी ऑन नहीं होगा, क्योंकि नाउ यू यूज द ज्ञान एंड दर्शन परफेक्ट। तो ये जो सेंटेंस है वो बहुत, और आपने कहा ने, और मैंने इसीलिए कहा कि आध्यात्म विज्ञान में दो ही चीज है, ज्ञान और दर्शन, दूसरी कोई चीज है ही नहीं। सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन के अलावा कोई उपयोग पुरुषार्थ है ही नहीं। और वही पुरुषार्थ से मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन को मिटाना है। देयर इज नो एनी अदर सब्जेक्ट। बाकी जो भी सब्जेक्ट है वो रिलेटिव सत्य है, इसमें हमको डीप में जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट बाईपास। तो ये सिंपल बताया, और इसीलिए कहा कि यहां उसमें कोई कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक जहां तक नहीं समझ में आता है तहां तक 1 और 0 से भी समझ सकते हैं, फिर सेंटर और वर्तुल से भी समझ सकते हैं। वो एक एग्जाम्पल दिया टू इजी टू अंडरस्टैंड। कई लोगों को लॉजिकली एग्जाम्पल से समझ में आ जाता है कि मैं क्या कहना चाहता हूं, तो इसीलिए एग्जाम्पल दिए, मगर ओरिजिनल देखना है कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना। मगर इसको सपोर्ट देने के लिए मैं बाकी का एग्जाम्पल आपको सपोर्टिंग के रोल में दे रहा हूं, ताकि लॉजिकली आपका ईगो, आपकी बुद्धि इसको एक्सेप्ट करे। क्योंकि हर व्यक्ति की बुद्धि एकदम से एक्सेप्ट नहीं करती है। मैं कैसे रिलेटिव सत्य की वैल्यू को 0 करूंगा, तो मैं समझाता हूं कि 1 से ही उसकी वैल्यू है। तो समझने के बाद उसको मालूम हो जाता है कि नहीं, वैल्यू तो 1 ही होती है, बाकी तो 0 है। तो ये समझाने के लिए साइंस तो वही है, ज्ञान और दर्शन। और दर्शन में यही रहना चाहिए हमारे पास। देखो, सिंपल बात ये है, बिना दर्शन ज्ञान नहीं होता है। इट्स अ रूल्स ऑफ लॉ ऑफ नेचर। तो पहले दर्शन चाहिए, ज्ञान नहीं चाहिए। ज्ञान में लक्ष्य रखना है। क्या रखना है? ज्ञान में आपको कुछ करना नहीं है। आत्मा चेतन है, आत्मा अविनाशी है और सभी प्रकार की अनंत शक्तियों वाला आत्मा है। तो आत्मा के बारे में तो आपको कुछ करना है ही नहीं। यू टू कीप इन योर विजन व्हाट इज आई एम। और बाकी सब क्या है जिसमें हम फंसे हुए हैं विथ अवर इग्नोरेंस, उसको ही तो मिटाना है। और वो भी कैसे मिटाना है? विजन के फॉर्म में, दर्शन के फॉर्म में मिथ्या दर्शन को मिटाना है विद द हेल्प ऑफ सनातन दर्शन। और कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। तो ज्ञान दर्शन दो ही बात है, तीसरी कोई बात ही नहीं है यहां। इतना सिंपल है। धीरे धीरे ये तो हजारों लाखों लोगों को अपने आप स्वयं अनुभव में आता है, क्योंकि ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ साइंस है ना, ये व्यक्ति का नहीं है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। और कुदरत का है, कुदरत का है, कुदरत का था, कुदरत का है और कुदरत के पास ही रहेगा। हम तो इसको रियलाइज कर सकते हैं अपनी अज्ञान को मिटाने के लिए, दैट्स इट। अज्ञान मिटाने के लिए हम इसको यूज करते हैं। आप यूज नहीं करोगे तो भी कुदरत का ही है। ये अपने अज्ञान को मिटाने के लिए ये दर्शन की जरूरत है। एक बार अज्ञान मिट गया तो बाद में आपको ये पुरुषार्थ की जरूरत नहीं है। फिर आप जो कहते हैं ना, आपका स्टेटस मैं शुद्धात्मा हूं, उसमें ही रहेंगे। फिर आपको कुदरत, कुदरती रचना, कुदरती कानून देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको अज्ञान ही नहीं है। तो फिर ये अज्ञान को मिटाने के लिए दर्शन की जरूरत है। एक बार अज्ञान निकल गया तो फिर दर्शन की जरूरत। आप ज्ञान में रहो, आत्मा आत्मा में रहेगा, प्रकृति तो कुदरती रचना है, वो अपने स्वभाव में रहेगी। देयर इज नो पुरुषार्थ बिकॉज इन बिटवीन देयर इज नो इग्नोरेंसी। अज्ञान में वहां तक ही पुरुषार्थ है और अज्ञान में वहां तक ही आपको कुदरती रचना के रूप में वो अज्ञान को इनटू इन्वर्टेड कोमा रिलेटिव ट्रूथ वाला विजन इरेज करना है, दैट्स इट। और एक बार अज्ञान खत्म हो गया तो वही केवल दर्शन है, और केवल दर्शन हो गया तो ही केवल ज्ञान का बीज है। फिर केवल ज्ञान तो रिजल्ट के रूप में है, इसमें पुरुषार्थ नहीं है, क्योंकि आत्मा केवल ज्ञान स्वरूप है।
मगर प्रतिष्ठित आत्मा केवल दर्शन स्वरूप नहीं है, वो मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन स्वरूप है, इसीलिए पुरुषार्थ की जरूरत है। हर अवस्था के अंदर जो भी अवस्था राइज करती है उसके अंदर अगर मैं ये एस्टैब्लिश करता हूँ कि मैं शुद्धात्मा हूँ, मेरे कारण ये अवस्था एक्सपीरियंस हो रही है, तो ये उसमें मैं अवस्था को महत्व नहीं देता हूँ, जो भी अवस्था बन रही है, लेकिन वो जो एक्सपीरियंस हो रहा है वो मेरे कारण हो रहा है, तो ये पुरुषार्थ माना जाएगा। पुरुषार्थ तो है, पुरुषार्थ तो है, क्यों नहीं है। अवस्था में मैं नहीं, ये भी एक पुरुषार्थ ही है, पुरुषार्थ की एक मेथड है। जैसे मैंने 1 और 0 कहा, मैं 1 हूँ, बाकी सब 0 है। 0 मतलब कम एंड गो, बिगिनिंग एंड एंड, और 1 जो है इसका बिगिनिंग भी नहीं है, एंड भी नहीं है, क्योंकि वो आत्मा है। तो 1 इज परमानेंट एंड 0 इज ऑल्सो टेम्पररी। तो ये भी एक रास्ता है समझने के लिए। और सेंटर और सर्कल, बिना सेंटर सर्कल नहीं होता है। तो सेंटर वो सोल है, सोल है वहां तक बॉडी है, वहां तक लाइफ है। अगर सोल नहीं है तो लाइफ भी नहीं है। तो ये समझने के लिए दिया। तो आपने भी जो एग्जाम्पल दिया वो समझने के लिए दिया, मगर उपयोग क्या करना है? कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद प्रभु, आपने दंडवत प्रणाम, मारा अभेद भावे नमस्कार। જય સચ્ચિદાનંદ, બોલીએ બોલીએ। હવે આપણે અત્યારે જ હમણાં વિનોદભાઈના પ્રશ્નમાં જ અત્યારે આપણે કીધું મૂળ ઇમ્પોર્ટન્ટ જ્ઞાન અને દર્શન છે। બોલો બોલો। હવે સાહેબ, જે દર્શન જે મિથ્યાત્વ છે એને પુરુષાર્થ સામ્યક દર્શન થાય એના માટે પુરુષાર્થ કરવાનો છે। સમ્યક દર્શન। હા, સમ્યક દર્શન, મને શબ્દ બોલતો નો કઈ વાત નહીં, બોલો બોલો। એટલે હવે જે સાહેબ આ ભગવાને આ મિથ્યાત્વના જે પ્રકાર કહ્યા છે એમાં એક સહજ મિથ્યાત્વ અને એક ગૃહિત મિથ્યાત્વ, તો આ જરા ગૃહિત મિથ્યાત્વ વિશે જરા કંઈક કહો। સહજ મિથ્યાત્વ, ગૃહિત મિથ્યાત્વ અને સહજ મિથ્યાત્વ એવું છે? તમે વાંચેલું છે કે નથી વાંચેલું? ના, વાંચેલું છે પણ પ્રભુ આપના મોઢે એમ નહીં, શબ્દ ગૃહિત મિથ્યાત્વ શબ્દ બરાબર છે, બીજું મિથ્યાત્વ કયું છે? આપણે ગ્રહણ કરેલું, એમ ગ્રહણ કરેલું। નહીં, ગૃહિત મિથ્યાત્વ સિવાયનું બીજું કયું છે એનું પ્રશ્ન પૂછું છું। ગૃહિત મિથ્યાત્વ એટલે એક સહજ જે મિથ્યાત્વ હોય, પણ આ આધ્યાત્મિક સંબંધનું જે બાયણથી જે ખરેખર સિદ્ધાંતિક રૂપે જે ગ્રહણ કરવું જોઈએ એ ન ગ્રહણ કર્યું, સિદ્ધાંત બહારનું જે ગ્રહણ કરીને લાવ્યા હોય। એવું નથી પૂછતો, તમે મિથ્યાત્વના 2 પ્રકાર કીધા, એમાં બીજા પ્રકાર કયો એ પ્રશ્ન પૂછું છું। એક સહજ જે હોય એ મને આજે સમજાય છે, એ માટે હું તો કહું છું। અચ્છા, તમે વાંચેલું નથી, તમે વાંચેલું નથી, આ તમારી સમજણ કહો છો। કોઈ ધર્મના પુસ્તકો વાંચ્યા ના, એમ નહીં, એટલે તમે કોઈ રેફરન્સથી વાત નથી કરતા, તમે તમારી સમજી ગયો, જવાબ આપી દો। મેં કોઈ જગ્યાએ રેફરન્સથી બોલો છો? ઓકે, જો સમજી ગયો, સમજી ગયો। મૂળ મિથ્યાત્વ પોતે પોતાના સ્વરૂપને નથી જાણતો, એ મૂળ મિથ્યાત્વ છે। હું શરીર છું એ ફંડામેન્ટલ મિથ્યાત્વ છે, બરાબર। પોતે છે આત્મા અને માને છે શરીર। આ મૂળ મિથ્યાત્વ કહો, સહજ મિથ્યાત્વ કહો, ઓરિજિનલ મિથ્યાત્વ કહો। અને બીજું ગૃહિત મિથ્યાત્વ। ગૃહિત એટલે લોકો દ્વારા ગ્રહણ કરેલું, ટુ રિસીવ, બરાબર, કે ભાઈ આમાં સુખ છે, આમાં સુખ છે, આમાં દુઃખ છે, આમાં ગમો છે, આમાં અણગમો છે। આ 5 ઇન્દ્રિયના વિષયોના સુખ, જેમાં આપણે લોક સંજ્ઞાથી શીખ્યા, આમાં સુખ છે, આમાં સુખ છે, ખ્યાલ આવ્યો? આ જે માન્યતાઓ છે ગૃહિત એટલે લોકો દ્વારા ગ્રહણ કરેલું, અને સહજ એટલે મૂળ। મૂળ એટલે હું કોણ છું તે ન જાણવું, એ ફંડામેન્ટલ મિથ્યાત્વ, અને લોક સંજ્ઞાથી પ્રાપ્ત કર્યું એ ગૃહિત મિથ્યાત્વ, જેનાથી અનંત અવતાર ભટક્યા આપણે। આ જગતમાં સુખ અને દુઃખ જેવી વસ્તુ છે જ નહીં, પણ લોકોએ આપણને કન્વિન્સ કરાવ્યું ને કે સુખ દુઃખ છે। બસ, હવે સમજી ગયા?
હા, સમજી ગયા. હવે પ્રશ્ન મારો પાછો બીજો છે. એ જ્ઞાન દર્શન સંબંધનો જ છે. આપણે કહ્યું કે દર્શન હંમેશા સમજ રૂપે હોય અને કેવળ જે જ્ઞાન છે, કેવળ જ્ઞાન એ હંમેશા અનુભવ રૂપે હોય. તો હવે સાહેબ, જયારે અનુભવ રૂપે તીર્થંકર ભગવાનને જયારે અનુભવ રૂપે જયારે આ જ્ઞાન થાય, ત્યારે આપણે ઘણી વાર બોલ્યા છે કે 82 લાખ વિદ્યાઓ એને વરેલી હોય. તો હવે આ જયારે સમજ રૂપે જેને પોતાનું દર્શન ડેવલપ થતું હોય, ત્યારે પણ રસ્તામાં ડેવલપ થતા એને પણ આવી સિદ્ધિઓ કંઈક વર્તી હશે ને, એના વિશે કઈ થોડું કહો. સિદ્ધિ થાય બી કરી નાય થાય, પણ એની વેલ્યુ શું? એટલે આ તો સાધક ને સિદ્ધિ કોઈ સાધક ને વિધિ કોઈ થઈ ગઈ હોય, સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થઈ હોય, તો પછી આ જે 48 મિનિટનો કોન્સેપ્ટ છે એ એમ જ લપટાઈ જતો હશે ને? મારો એ પ્રશ્ન છે. ના, સિદ્ધિઓ એ બધી મોક્ષના માર્ગની અંદર એક્ઝિટ છે. બરાબર. એટલે ત્યાંથી ઉતરી જાય પાછો, જો એની વેલ્યુ કરે તો. અને વેલ્યુ ના કરે તો કશો વાંધો નહીં, તો સિદ્ધિઓ પ્રગટ થાય. તો આ જીવ 11 માં ગુંઠાણેથી જે પાછો પડે છે એનું મૂળ કારણ આ જ હશે કે કઈ બીજું હોઈ શકે ને? સિદ્ધિઓ પણ હોઈ શકે, સિદ્ધિ હોઈ શકે. ઇન્ટુ ઇન્વર્ટેડ કેમાં વેલ્યુ ઓફ રિલેટિવ ટ્રુથ, પછી એમાં બાયફર્કેશન ગમે તે કરી શકો. બરાબર. વ્યવહાર સત્યમાં જ ફસાયો છે. પછી એ સિદ્ધિ રૂપે કહો કે શક્તિ રૂપે કહો, ભોગવટા રૂપે કહો, જે રીતે કહો તે. પણ રિલેટિવ સત્ય એટલે ટેમ્પરરી ટ્રુથ. આજે છે ને કાલે નથી, વિનાશી. ટેમ્પરરીમાં ટૂંકમાં જેને રસ જાગ્યો ટેમ્પરરીમાં ઈ ફસાયો. આખો સાર એવો મને સમજાડો. બસ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. એટલે આ શું છે કે એટલું હ્યુજ સ્પિરિચ્યુઅલ સાયન્સ છે કે જે સાયન્સ એ કુદરતના કાનૂન ઉપર આધારિત છે. કોઈ ધર્મ સંપ્રદાય ઉપર આધારિત નથી, કોઈ શાસ્ત્ર ઉપર આધારિત નથી. જે મહાન પુરુષો મુક્તિને પામ્યા એ બધાએ આ જ યુનિવર્સલ ટ્રુથ સાયન્સ સમજવું પડે, અનુભવવું પડે. તે પહેલાં અંદરની દ્રષ્ટિમાંથી અજ્ઞાન જાય નહીં. આ જગતનું રિલેટિવ સત્ય એને આધ્યાત્મમાં અજ્ઞાન કહેવાય છે. એનાથી જ રાગદ્વેષ થાય છે, એનાથી જ કર્તાપણું ને માલિકીપણું થાય છે, અને એનાથી જ કર્મ બંધાય છે, એનાથી જન્મ મરણ છે. અને અજ્ઞાન કાઢવાનો એક જ રસ્તો, જે તમે નથી, તમારું નથી ને તમે ભોગવતા નથી, એ કોનું છે એને તમે જેનું છે એ તરીકે જુઓ, અને તમે શું છે એ જાણો. આ શરીરને બાળ્યા પછી પણ તમે છો, યસ કે નો? એ આપણે છીએ. જો શરીર આપણે હોઈએ તો એને બાળ્યા પછી આપણું અસ્તિત્વ ખલાસ થઈ ગયું. એવું છે? હવે સમજાઈ ગયું? અને બાળ્યા પછી પણ જે છીએ એ આપણે મૂળ સ્વરૂપે છીએ, જેને આપણે શુદ્ધ આત્મા કહીએ છીએ. અને બાળી નાખીએ છીએ આપણે નથી, એ કુદરતે બનાવેલું કર્મ ભોગવવાનું મશીન છે. સમજાય છે? એ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ, એ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટથી કર્મ ભોગવીએ છીએ. કર્મ આ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે, એ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ બધાના સરખા છે. એના ડિઝાઇન ફોર્મ કયા ફોર્મમાં? સિસ્ટમ ફોર્મમાં બધાના ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ સરખા છે. કોઈ પણ ડૉક્ટર કોઈ પણ બોડીને રિપેરિંગ કરી શકે, કારણ કે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ડિઝાઇન ઇઝ ધ સેમ. અલગ અલગ હોય તો ડૉક્ટર અલગ અલગ જોઈએ, પણ દુનિયામાં બધાના ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ કેવા છે? એક જ સિસ્ટમના છે. જાડા પાતળા ઊંચા નીચા હોઈ શકે, પણ સિસ્ટમ તો એક જ હોય. એટલે એક સિસ્ટમ કેમ છે? તો કે કુદરતે બનાવી છે. એમાં ચોઈસ કોઈ કે મારે પાછળ હાથ જોઈએ ચાલે? ના ચાલે. નેચરલ સિસ્ટમમાં તમારી પાસે ચોઈસ નથી. આ કુદરતે બનાવ્યું છે મશીન, બરાબર છે? આજે આની સિસ્ટમ જે બનાવી છે એ કુદરતે બનાવી છે, બધાની સરખી. પછી આ શરીર બનાવ્યું હાર્ડ ફોર્મ. પહેલાં અંદરની સિસ્ટમની વાત કરી, બ્લીડિંગ, બ્લડ સર્ક્યુલેશન, ડાયજેસ્ટિંગ, એ બધી સિસ્ટમની વાત કરી. હવે આ ફિઝિકલ બોડીની વાત કરું છું.
એ ફિઝિકલ બોડી પંચ મહાભૂતોની બનેલી છે. પૃથ્વી, જળ, વાયુ, અગ્નિ, આકાશ. એ પંચ મહાભૂત પણ કોના છે? કુદરતના છે. ડિઝાઇન કુદરતની, પંચ મહાભૂત પણ કુદરતના. હવે આ બોડી તો બની ગયો, હવે એને 75 થી 100 વર્ષ જીવતું રાખવાનું. એટલે મિનિમમ શું જોઈએ? હવા, પાણી, ખોરાક. એ પણ કોણ આપે? કુદરત આપે. ખોરાકનું મેન્યુફેક્ચરિંગ થાય, ઘઉં ચોખા ફેક્ટરી બનાવાય? એ તો કુદરત જ બનાવે. વનસ્પતિ ફેક્ટરી બને? ના બને, તો કુદરત જ બનાવે. એટલે હવા, પાણી, ખોરાક પણ કોણ આપે? ડિઝાઇન કુદરતની, શરીર કુદરતનું, જીવતું રાખવા માટે હવા, પાણી, ખોરાક કુદરતના. પછી જન્મથી મોત સુધીના જીવનના બધા કર્મ ભોગવવાના સંજોગો, એ આપણી ચોઈસ છે. જન્મતાની સાથે મા બાપે ચોઈસ છે કે કમ્પલસરી છે? ખ્યાલ આવ્યો? ભાઈ બહેન ચોઈસ છે. રહેવાનું ઘર મળ્યું જન્મતાની સાથે ચોઈસ છે. જન્મતાની સાથે ધર્મ મળ્યો ચોઈસ છે. તો કેમ મળ્યો? તો આ બધું મળ્યું કેમ આપણને? કર્મ હિસાબે. પણ આજે હિસાબ કોણે આપ્યો? કુદરતે. બીકોઝ વી ડોન્ટ નો. કર્મનું ફળ આવ્યું, પણ કર્મનું ફળ આપ્યું કોણે? કર્મ તમે બનાવ્યા હતા, પણ આજે આ સંજોગ કોણે આપે? હુ પ્રોવાઈડ યુ ધ સર્કમસ્ટાન્સીસ વેન યુ બોર્ન? મા બાપ કોણે આપ્યા? ભાઈ બહેન કોણે આપ્યા? તો કે કુદરતે. કેમ? તો કે કર્મના ફળ રૂપે. પણ આપ્યા કોણે? મીડિયેટર તરીકે? તો કે કુદરત. આપણે નક્કી નથી કર્યું કે મારે અહીંયા જવું છે, નક્કી કર્યું આપણે? આપણે તો કર્મ કર્યું, કર્મનું ફળ કુદરતે આપ્યું. સમજાય છે? એમ જીવનના બધા સંજોગો જે આવે છે ભોગવટાના, સફરિંગના, એ બધા સંજોગ કોણ આપે છે? આવતીકાલે શું થવાનું છે આપણને ખબર? આપણી ડેથ ક્યારે થવાની છે એ પણ ખબર? કારણ કે જન્મથી મોત સુધી મન, વચન, કાયા અને તેની અવસ્થા માત્ર કુદરતી રચના છે. બધા સંજોગો. એટલે ડિઝાઇન કુદરતની, પંચ મહાભૂતોનું શરીર કુદરતનું, જીવતું રાખવા માટે હવા, પાણી, ખોરાક કુદરતના, જન્મથી મોત સુધીના બધા સંજોગો પણ કુદરત આપે, અને છેલ્લે શ્વાસ બંધ પણ કુદરત કરે. એમાં આપણું ઓપરેશન ક્યાં છે? આપણી ફ્રીડમ ક્યાં છે? બતાવો. એક્ઝામ્પલ. ડિસાઈડ કરું કે મારે કોઈને દુઃખ પહોંચાડવું છે કે નથી પહોંચાડવું. ધેટ્સ ઓલ. એ આપણા હાથમાં છે કે સંજોગાધીન છે? એ પણ આમ તો કર્મ જ છે. તો પછી વાત તો પાછી 8 મિનિટ પછી આમ કાન તો પકડવાના જ પાછા. તમારે સારું કરવું છે પણ સંજોગ ના હોય તો, અને ખરાબ નથી કરવું પણ સંજોગ હોય તો, એટલે એને કર્મ કહેવાતું નથી, એને કર્મ ફળ કહેવાય. When our life is pre-decided and no choice, it means it is a result of our previous birth cause. પાછલા અવતારના કર્મનું ફળ છે. એમાં ચોઈસ ના હોય. જે ફરજિયાત હોય એને પુરુષાર્થ કહેવાય? ફરજિયાત હોય એને પુરુષાર્થ કહેવાય? ના જ કહેવાય. So life is pre-decided from birth to death. સમજાય છે? તો પછી પુરુષાર્થ ક્યાં છે? પણ આઈ થિંક પુરુષાર્થ તો મેઇન કોઈ આપણે પ્રોફેશનલ ફ્રન્ટમાં કે સોશિયલ ગમે એ રીતે આપણે કોઈને ને કોઈને ઇન્ટરેક્શન્સ થતું હોય છે, તો સામે વાળી વ્યક્તિનું જે બિહેવિયર હોય છે ઘણી વખત એ બિહેવિયર સાથે સિન્ક્રોનાઇઝ કરવામાં જ તે મેઇન તો પુરુષાર્થ છે. બીકોઝ વી સમટાઈમ્સ વી ડોન્ટ નો ધેર ઇન્ટેન્શન્સ. એન્ડ મને મારું એવું કહેવું છે કે પ્રોફેશનલ ફ્રન્ટની અંદર આજે 50 લોકો સાથે હું કામ કરું છું, all 50 they don't have same perception of me. Okay. અને ચેલેન્જીસ ત્યાં ઘણી વખત ચાલુ થતી હોય છે. પછી બરાબર. એટલે એને એક હું પુરુષાર્થ કહું છું કે એની અંદર રહીને આપણે એક તો કામ રહેવાનું, પોતાના જે શું છે કે સારો જે સ્વભાવ છે એને મૂકીને કોઈ બીજું અપશબ્દ ન બોલી દેવા, આ તે
સેલ્ફ કંટ્રોલ છે એ જ આઈ થિંક પુરુષાર્થ. એટલે રામે રાવણ સાથે યુદ્ધ કર્યું અને તમે શું કહેશો? કંટ્રોલ નથી એવું કહેશો? અજ્ઞાન છે એવું કહેશો? અનકેપેબલ છે એવું કહેશો? નબળા છે એવું કહેશો? ક્રોધી છે એવું કહો છો? યુદ્ધવાળા છે એવું કહેશો? હિંસક છે એવું કહેશો? શું કહેશો? કારણ કે આપણું રામે કર્યું, તો તમે શું કહેશો ઇન યોર લેંગ્વેજ? ઇટ વોઝ નેસેસિટી. એ નેસેસિટી છે અને તમે કોઈના પર ગુસ્સે થવા એ અનનેસેસિટી છે. એટલે ઓફકોર્સ બીકોઝ સ્ટેબિલિટી માટે થઈને કદાચ. આઈ એમ ટોકિંગ અબાઉટ ધ પ્રિન્સિપલ. ઇટ્સ નોટ મેટર ઓફ પર્સન. ખાલી એક્ઝામ્પલ એટલા માટે આપ્યું તમે ઇઝી ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ થાય. પણ આપણે વાત કરવાની છે લો ઓફ નેચરની. લો ઓફ નેચરમાં ઓપ્શન ના હોય. રામ માટે કે તમારા માટે કે મારા માટે কোনো ઓપ્શન. આ દુનિયામાં જન્મેલો પ્રત્યેક વ્યક્તિ કુદરતના કાનૂનને આધારે જીવે છે. પછી રામ હોય, કૃષ્ણ હોય, મહાવીર હોય, હું કે તમે હો, જન્મેલો માણસ. બરાબર છે? એટલે લો બધા માટે કેવો છે? એમાં કોઈ ઓપ્શન નથી. શું નથી? જો વિજ્ઞાન સમજવું હોય તો. પછી શ્રદ્ધાની વાત સમજવી હોય તો વ્યૂ પોઈન્ટ છે જ બધાને. વન્સ યુ ટેલ અસ કે ઇઝ અ ગોડ, તો પછી વાત પતી ગઈ. કોઈને ભગવાન જ માનવું છે તો પછી કોઈ પ્રસંગ ના આવે ને, ક્યારે આવી ગયો કે નહીં. એટલે આપણને હજુ ખબર જ નથી કે પુરુષાર્થ કોને કહેવાય. સમજાય છે? જે જન્મથી મોત સુધી તમારી પાસે કુદરતે શ્વાસ લેવાની પણ સ્વતંત્ર શક્તિ નથી આપી. સમજાય છે? જો આપણી શક્તિ હોત ને તો રાતે ઊંઘ્યા પછી માણસ રાખવો પડે શ્વાસ માટે. યસ કે નો? કારણ કે આપણે તો ઊંઘી ગયા, હવે કોણ શ્વાસ લેશે? તો આપણે લઈએ છીએ કે ઓટો મૂળ છે. શ્વાસ લેવાની શક્તિ આપણી પાસે નથી, પણ જે શ્વાસથી મન વચન કાયા ચાલે છે એમાં શક્તિ છે આપણી. નહીં, થિંક અબાઉટ. તમે વિચાર કરીને જવાબ આપો. હું તો તમારી પાસે સિમ્પલ લોજિક મૂકું છું, તમારે આન્સર આપવાનું છે. કોઈ આપણી પાસે સત્તા નથી અને કોઈની પાસે નથી. આ દુનિયામાં જન્મેલો કોઈ પણ વ્યક્તિ મન વચન કાયાથી સ્વતંત્ર હોઈ શકે નહીં. ખ્યાલ આવ્યો? અને પુરુષાર્થ માણસ જે કરે છે એ ભાવથી કરે છે. જેવો ભાવ તેવો ભાવ, જેવી મતિ એવી ગતિ, જેવી ક્રિયા એવી ગતિ. ક્રિયા એટલે મન વચન કાયા. એવી ગતિ કોઈ શાસ્ત્રમાં નથી. ભાવ, intention, they create the cause. Action not create the cause. લાખો લોકોને મારવા પછી રામ તો મોક્ષે ગયા, તો એક્શન તો બેડ હતી પણ ઇન્ટેન્શન નતો ને, ભાવ નતો ને. ભાવથી ભાવ છે, ક્રિયાથી ભાવ. ભાવ ઇઝ અ કોઝ. સમજાય છે? અને એ ભાવથી ભાવ છે. અને ભાવ ન થવા કોઈ પણ પ્રકારના રાગ, દ્વેષ, ગમો, અણગમો, માલિકી ભાવ, કર્તા ભાવ, એનું નામ વિજ્ઞાન. અને એ વિજ્ઞાનથી મુક્તિ છે. ભાવથી ભાવ છે, પણ ભાવ જ ના કરો તો ભાવ કેવી રીતે થશે? એનું નામ મોક્ષ. એટલે આ વિજ્ઞાન કોઈ પણ પ્રકારના સંસારી ભાવ સમાપ્ત કરવા માટે છે. ઝીરો પછી રિવર્સ થાય એનું નામ મોક્ષ. પણ ભાવ કેમ થાય છે? કારણ કે આ મન વચન કાયાથી જે કંઈ થાય છે એ હું કરું છું, હું વિચારું છું, હું બોલું છું, હું ક્રિયા કરું છું. સામેવાળા બોલે છે, સામેવાળા કરે છે, એવું માનીએ છે ને. બસ એ અજ્ઞાનતા છે. અને આ જે કંઈ થઈ રહ્યું છે આ મન વચન કાયા દ્વારા કે બીજાના મન વચન કાયા દ્વારા, એ બધું કુદરતી રચના છે. કારણ કે શરીર એ કુદરતનું, સંજોગો એ કુદરતના, હવા પાણી ખોરાક એ કુદરતના. યસ કે નો? તો કુદરતી રચના જોશો તો રાગદ્વેષ થાય. કોઈએ ગુસ્સો કર્યો તો એ કુદરતી રચના, પ્રેમ કર્યો તો એ કુદરતી રચના, આપણે ગુસ્સો કર્યો તો એ કુદરતી રચના, ખરાબ વિચાર આવ્યો તો એ કુદરતી રચના, ખરાબ વાણી બોલાવી
તોય કુદરતી રચના, ખરાબ વર્તન થઈ ગયું તોય કુદરતી, અને સારું થયું તો પણ, અને બીજાના થયું તો પણ. તો પછી રાજ્યોત્સવનું કારણ શું? ઈચ્છા શેના માટે? કોઈ પણ વસ્તુને પ્રાપ્ત કરવાની, કે ઈગો આવી ગયો ત્યાં? સમજી ગયો, પણ કોઈ પણ વસ્તુ પ્રાપ્ત શેના માટે કરીએ? એક્ઝામ્પલ કે મારે પ્રાપ્ત કરવી છે, વોટ ઇઝ ધ રીઝન બિહાઇન્ડ? પોતાની જરૂરિયાત માટે. જરૂરિયાત માટે. જરૂરિયાત માટે તમે જે જીવન જીવી રહ્યા છો એ તમારા કર્મ પ્રમાણે ઉકલી રહ્યું છે. એ સુનિશ્ચિત છે, જે મેં તમને એક્સપ્લેન કરી નાખ્યું. એક પણ સંજોગ તમે બનાવી શકતા નથી. તમારા મન વચન કાયા ગયા અવતારના કર્મો પ્રમાણે વિક્ટિમ્સ છે, એની પાસે ચોઈસ નથી. ને ચોઈસ નથી તો પછી એ પુરુષાર્થનો તો પ્રશ્ન આવો જ ના જોઈએ. જ્યારે ઓટોમોટરસાયકલ છે આખી લાઈફ, છેલ્લા શ્વાસ સુધી, તો પછી એ તો પ્રશ્ન નથી આવતો. કારણ કે તમે જે કંઈ કરવાના છો એ સંજોગ આવીને કરવાના છો. સંજોગ ભાઈ કુદરત આપે છે. કેમ આપે છે? તમારા કર્મના ફળ રૂપે. તો તમારી પાસે ક્યાં ચોઈસ છે? આ સમયમાં શાંત રહેવું, ગુસ્સો કરવો, ના કરવો, ચોઈસ જ નથી. રામે યુદ્ધ કરવું ના કરવું ચોઈસ નથી. they have to do. કારણ કે કર્મ ફળમાં ચોઈસ ના હોય, રિઝલ્ટમાં ચોઈસ ના હોય, એક્ઝામમાં ચોઈસ હોય. એક્ઝામ એટલે કર્મ બાંધવું અને રિઝલ્ટ એટલે કર્મ ભોગવવું. અને જન્મથી મોત સુધી કર્મ ભોગવીએ છીએ. એના માટે આ બોડી આપી છે. કર્મ પતી જાય એટલે આ સાધનને વાળી નાખવાનું, એનો રોલ પતી ગયો. અને અંદર જે નવા કર્મનું ચિત્રામણ કર્યું છે એનાથી પાછો નવો ભાવ થશે. જેના બધા સંજોગ પાસે કોણ આપશે? કુદરત. એમાં તેના સંજોગ કોણ આપશે? આ લાઈફમાં કુદરત આપશે. પછી ચિત્રામણ તો અંદર તમે કરો છો રાગદ્વેષથી, કરતા ભાવ, માલિકી ભાવ, દેહાદ્યાસ, મારું તારું, લાઈક ડિસલાઈક, એનાથી પાછા નવા કર્મ બાંધો છો. એ જે અંદર ચિત્રામણ છે એનાથી જે કર્મ બંધાય છે એનાથી પછી નવી લાઈફ છે. પણ નવી લાઈફ કેમ આવશે? કઈ કોણ આપશે? એ પણ કુદરત નક્કી કરશે. તમારી શરીર કોણ મળશે? પુરુષનું, સ્ત્રીનું, મા, બાપ, ભાઈ, બહેન, પાછું કોણ નક્કી કરશે? કુદરત. કેમ? તમારા કર્મના આધારે. એટલે આ સાયકલ તો પછી ચાલ્યા જ કરવાની. અંત ક્યારે આવશે? તો કે આ સાયકલ સૌ ખાવાનું કારણ કર્મ છે. એ કર્મ ના બંધાય તો સાયકલ ના ચાલુ રહે. તો કર્મ કઈ રીતે ના બંધાય? તો કે કર્મ તારે ના બંધાય કે જ્યારે તમારી આ મન વચન કાયાની અવસ્થા જે કુદરતી રચના છે એ કુદરતી રચના દેખાય, અને આ બધાના મન વચન કાયાની અવસ્થા કુદરતી રચના દેખાય તો નવા કર્મ ના બંધાય. યસ કે નો? અને કુદરતી રીતે નહીં દેખાય તો રાજ્ય સમાન જ છે. હું અંદરની વાત કરું છું. અને તો કર્મ બંધાવાના જ છે. કુદરતનું કાનૂન ચોખ્ખું જ કહે છે કે આ દુનિયામાં જન્મેલો કોઈ પણ જીવ કશું લાવતો નથી અને મરી જાય ત્યારે કશું લઈ જતો નથી. અને જે અહીંયા મળ્યું છે તો કુદરતે આપ્યું છે અને પાછું મૂકીને જ જવાનું છે. પછી માલિકી ક્યાં રહી? બોલતા નથી. બતાવીએ. શરીર પર મૂકીને જવાનું કારણ કે કુદરતે આપ્યું છે. તો સત્તા, સંપત્તિ, સંબંધ, સાધનો આપણા હોઈ શકે? શરીર ના હોય તો આ બધું હોય? ભ્રાંતિ જ છે ને. ભ્રાંતિ જ છે ને. હવે સમજાય મારી વાત? આ દુનિયા ભ્રાંતિથી ચાલે છે. અને જો સનાતન સત્ય સમજાય તો તમારી વ્યક્તિગત દુનિયા બંધ થઈ જાય. બાકીની દુનિયા તો ચાલ્યા જ કરવાની. એક મિનિટ, ખ્યાલ આવ્યો? સ્થિત પ્રજ્ઞ અવસ્થા એ જ થઈ. સ્થિત પ્રજ્ઞ અવસ્થા તો બધા મોટા મોટા શબ્દો છે બધા, પણ હું તમને પ્રેક્ટિકલ બતાવું છું કે જેના આધારે સ્થિત પ્રજ્ઞ કરતા પણ ઊંચી દશા પ્રાપ્ત થાય. આ તો શબ્દ છે. એ લોકોએ જે દશા ઉત્પન્ન થઈ એને નામ આપી દીધું સ્થિત પ્રજ્ઞા. આપણે નામ નથી આપ્યું. કુદરતી રીતે જોશો બસ તમે રાગદ્વેષ નહીં થાય. ધેટ્સ ઇટ. એ જ રીતે રાખતા તમારી. નામ સાથે શું નિસ્બત છે? આપણે પછી નામના પઝલ ઉત્પન્ન થશે. તમે સ્થિત પ્રજ્ઞા બોલશો એટલે પાછું મારે મિનિંગ બતાવવો પડશે. એ સ્થિત પ્રજ્ઞા એટલે શું? પાછું તમે ચોપડીમાં જ લાયા હશો અને હું જુદું બોલીશ, જુદું લાગશે પાછું. ના એવું
ના ના, એટલે દરેક વ્યક્તિ પાસે કંઈક નોલેજ તો હોય ને. તમે વાંચીને લાવો એટલે આઈ એમ નોટ ટોકિંગ અબાઉટ ધ યુ આર રોંગ ઓર રાઈટ, પણ તમે વાંચીને બોલ્યા હોય તો સાંભળીને બોલ્યા હોય એટલે તમે પછી એવી વ્યાખ્યા કરશો. આપણું કામ તો એવું જ્ઞાન દર્શન હોવું જોઈએ જેનાથી રાગ દ્વેષ ના થાય. દેટ્સ ઇટ. રાગ દ્વેષ ના થાય તો કર્મ ના બંધાય. પછી એને સ્થિત પ્રજ્ઞ કહો, મુક્તતા કહો, દેહાદ્યાસ ખલાસ કહો, જે કેવું હોય કહો, નામ ગમે તે આપો, રિઝલ્ટ વિતરાગતા થવી જોઈએ, રાગ દ્વેષ થવા જોઈએ નહીં. દેટ્સ ઇટ. નામ ગમે તે આપો. અને એ વિતરાગતા લાવવા માટે મન વચન કાયા અને 5 ઇન્દ્રિયોથી અનુભવાતી સમગ્ર સૃષ્ટિ કુદરતી રચના જોયા સિવાય બીજો કોઈ શ્રેષ્ઠ માર્ગ નથી. કારણ કે કુદરતી રીતે નહીં માનો તો પણ શું છે, જે મેં હમણાં કીધું, ના માનો તો પણ શું છે, કુદરતી રચના છે. તો પછી કુદરતી રચના છે તો પછી જોવામાં વાંધો શું છે? બીજી બુદ્ધિ વાપરવાની ક્યાં જરૂર છે? કુદરતી રચના છે, મેં તમને આખું સમજાવ્યું, બરાબર છે? તો પછી કુદરતી રચના છે તો પછી કુદરતી રચના જોવામાં વાંધો શું છે? આપણા મન વચન કાયા હોય કે બીજા કોઈ પણ વ્યક્તિના મન વચન કાયા કુદરતી રચના નથી, તો હું સારી શું કહું છું? જોવાના, બનાવવાના ક્યાં કહું છું? અને કુદરતી રચના જોશું તો રાગદ્વેષ નહીં થાય, નવા કર્મો નહીં બંધાય, જૂના તો ભોગવવા જ પડશે. જે તમે પ્રોગ્રામ લઈને આવ્યા તો પૂરો કરવો જ પડશે. દ્રષ્ટા કહો, ઓબ્ઝર્વર કહો, સેપરેશન કહો, ગમે તે કહી શકો, સ્થિત પ્રજ્ઞ કહો, વિતરાગ કહો, નિષ્પક્ષપાતી કહો, દેહાદ્યાસથી મુક્ત કહો, બધા શબ્દો શાસ્ત્રમાં લખેલા હોય, પણ શબ્દોની માયાજાળમાં ફસાવાનું નહીં. શું કહેજો? સમજાય છે? હું તો આ દરેકને 25 શબ્દ બોલી દઈશ, કોઈ મિનિંગ નથી એનું. આપણે મર્મ જાણવો છે, શબ્દોને શું કરવું છે, ખ્યાલ આવે ને? શબ્દોમાં બાંધ્યા છે ક્યાં સુધી? જન્મમાં રણમાં જીતે તે સુર. યસ કે નો? શબ્દોને શું કહે? તલવાર હાથમાં આપી પણ ચલાવતા જ ના આવડે. તલવાર થોડી રક્ષણ કરે, ચલાવતા આવડવી જોઈએ ને સાહેબ. એમ શબ્દમાં રાખ્યું છે શું? રણમાં જીત્યો તે સુર. ખ્યાલ આવે? અને તમે તો શું કીધું? તમે તમારું કાસ્ટ કઈ કીધી? ગઢવી. ગઢવી તો બધા ચારણ કહેવાય બધા. યસ કે નો? દુહા બુહા સરસ બોલે, મને ખબર છે ને. ચારણનું મેં એમને ઘણા બધાને મેં સાંભળ્યા છે. પાલીતાણામાં હું જૈન છું પોતે, એટલે પાલીતાણામાં પણ ગઢવી આવે તો બધા સરસ દુહા ગાય ને બધા એ છંદ બોલે ને, આમ અવાજ એવા ક્યારે આવે ને, આમ તમને આમ ધ્રુજારી ઉત્પન્ન કરી નાખે. અવાજીઓ પાડીઓ કુદરતી કહું છું ને, કુદરતી બક્ષિસ છે. તમારા ગઢવી પાસે ચારણ કોમ તો જબરજસ્ત. કલાપીએ કેવું લખ્યું છે એના માટે? ચારણ કન્યા. કેવું ઝવેરચંદ મેઘાણી કેવું લખ્યું છે? જબરજસ્ત. એ કેવું એનું શૌર્ય કહેવાય, નિડર કેવી કહેવાય ચારણ કન્યા. એના હાથમાં ડાંગ હોય એટલે પતી ગયું, બીજું કશું ના જોઈએ. સિંહ પાસે જતો રહે. ખ્યાલ આવે ને? એટલે એ એક કોમની સ્પેશિયાલિટી છે એમાં. જેની જે ક્વોલિટી હોય તે કહેવું પડે ને આપણે, જે હોય તે. બિલકુલ. એ તો આપણને લાગે કે આ સિંહ છે, એ લોકો માટે તો કૂતરા હોય, ફર્યા કરતા હોય, એવું કોઈ લેવા દેવાની એને. એ કહેતા કે અમે આમ ફરતા હોય જતા હોય તો અમે તો જાણે કે કૂતરું જાય છે, એ સમજી જાય. અમે ગભરાઈએ તો એમને ગભરાવે, એને લાગે આપણે ગભરાતા નથી, સમજે કે આપણા એવા જ છે, એટલે એ કશું ના કરે. તમે ગભરાવો તો તમને વધારે કરે. તમે જો કૂતરું હોય ને ઊભા રહેશો ને બસ તો કશું નહીં કરે, પણ જો આમ જશો ને તો વાય આવશે. સ્વામી વિવેકાનંદે એકવાર પોતાના જીવનમાં લખ્યું હતું કે હું કોઈક જંગલમાંથી પસાર થતો. પેલા જંગલ એટલે પહેલાં તો પેલા વટે માર્ગો મારા જંગલ જેવા રસ્તા હતા ને પાકા રસ્તા ક્યાં હતા? એટલે કે હું રસ્તામાંથી પસાર થતો હતો અને ત્યાં મારી પાછળ વાંદરાઓ પડ્યા, મંકી. એટલે હું આગળ ગયો તોય પાછળ આવ્યા, થોડે આગળ ગયો તોય પાછળ આવ્યા. પછી મને થયું કે હું કશું કરતો નથી,
તો આ વાંદરા વાહે કેમ આવે છે, એટલે પછી એ સામે જવા મળે તો વાંદરા જતા રહે. એને એમ કે તમે ગભરાવો છો, તમે સામે જાઓ તો यस आपनो प्रश्न है तो. स्वामी जी, जो हमारा नेक्स्ट लाइफ होती है इट इज डिपेंडेंट ऑन जो इस लाइफ के कर्म है. यस यस. और वो कर्मों का जो एसेंस है जो भी कॉजल में जाएगा दैट विल डिसाइड द नेक्स्ट लाइफ. यस यस. उसमें हमारी जो अनफुलफिल्ड डिजायर्स हैं उनका क्या रोल है? जैसे कर्म तो किए हैं, कर्म के हिसाब से कॉजल बना, तो उसमें डिजायर्स का भी रोल है? क्योंकि आप डिजायर लाइफ की बात करते हैं या डिस्चार्ज की? इस जन्म की जो डिजायर्स पूरी नहीं हुई है या उनका कुछ रोल है नेक्स्ट लाइफ के लिए? या डिजायर लाइफ तब होती है जब डिजायर डिस्चार्ज होती है, उसमें लाइव पार्ट जुड़ जाता है तो वो लाइव हो जाती है, नहीं तो डिजायर अपने आप ही डिजोल्व हो जाती है. अपने आप डिजोल्व हो जाती है. yes. अगर आप इसका ऑब्जर्वर है तो डिजोल्व हो गई, वो डिस्चार्ज है. मगर आपका लाइव पार्ट जुड़ गया, नहीं मेरे को कार तो मिलनी ही चाहिए भले ही अवतार में नहीं मिले, तो आप अटैच हो गए, लाइव पार्ट अटैच हो गया. दे क्रिएट द न्यू कॉज, दैट विल क्रिएट अ न्यू कॉज. बाकी जो हो रहा है वो तो डिस्चार्ज है, तो डिस्चार्ज वो ऑटो मोड है. मगर लाइव कब बनेगा? तुम लाइव है, डिस्चार्ज लाइव नहीं. वो तो डिस्चार्ज का मतलब अपने आप खत्म होने के लिए ही आया है. आप समझे ना? जैसे आज आज हमारी डेट है 18 तारीख, 18 सितंबर 2022 है, तो 17 सितंबर 2022 और उसके पहले समय के लिए हम मर चुके हैं. यस और नो? वी डाई. तो उसका लोड लेने से क्या फायदा? हम मर चुके हैं कि नहीं? उनका श्वास खत्म हो गया, आयुष्य खत्म हो गया और सफरिंग भी खत्म हो गया. दूसरों को याद करने से क्या फायदा? इज देयर एनी बेनिफिट? मगर लोग लोड लेके जीते. मेरे को 55 साल हो गया, मेरे को 60 साल हो गया. मेरे पूरा 60 साल खत्म हुआ कि आज हुआ? तो खत्म हुआ तो छोड़ दो रे. अभी तक तो आपने सफरिंग किया, अभी आपको आज ग्रॉस सफरिंग करना है 60 साल का याद करके. वाह, आज का जो सफरिंग है वो तो आपके लिए कंपलसरी है, और पिछले 60 साल का भी याद करोगे तो सफरिंग कम होगा या ज्यादा होगा? क्या होगा? ज्यादा होगा. और जरूरी है? 60 साल में तो आपने जो सफरिंग करना था वो किया कि नहीं किया? तो आज क्यों करते हो? आज तो जो आपका कर्म का उदय आज का है उतना सफरिंग करो, कंपलसरी है. जो हो चुका है इसको याद करके भी सफरिंग करने का, इज इट प्रैक्टिकल? हर बातों में बस वो है पास्ट का याद नहीं करो, लेकिन उससे कुछ लेसन सीखा है, वो प्रकृति के लिए वो लर्निंग कहीं अंदर बन गई, वो चलता रहेगा, वो आगे कुछ नए डायरेक्शन देगी. देखो ये जीवन का जो लर्निंग है वो श्वास तक ही रहेगा. कब तक रहेगा? अच्छा. श्वास चले फिर नए बर्थ में नया लर्निंग होगा. तो इसकी वैल्यू क्या रही? और जो लर्निंग करना है वो तो प्रकृति का स्वभाव है, टू लर्न फॉर इज बेस्ट लाइफ. मगर वो पुरुषार्थ का स्वभाव नहीं है. ये परिणाम वाली ही प्रकृति है. आपको भी मालूम है कई सारे लोग एक भी प्रकार की गलतियां बार बार करते हैं फिर भी उसमें से ज्ञान नहीं लेते हैं. और कई लोग ऐसे होते हैं बिना गलती किए ही अवेयर हो जाते कि नहीं ऐसा तो मैं नहीं करूँगा. तो ये इट्स अ इंडिविजुअल मैटर, और वो भी रिजल्ट के रूप में. ये पुरुषार्थ नहीं है. अवेयरनेस आनी और नहीं आनी ये आपके हाथ में नहीं है. प्रकृति के संदर्भ में, ज्ञान दर्शन के संदर्भ में अवेयरनेस होनी चाहिए. मन वचन काय के संबंध अवेयरनेस कहो या न कहो कोई फर्क नहीं. आप समझे? राम सीता को बोल के गए थे कि लक्ष्मण रेखा दौड़ के गए थे लक्ष्मण जी कि इसमें से बाहर निकलना नहीं, दिस इज योर सिक्योरिटी.
फिर भी क्या हुआ? क्रॉस किया तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्योंकि जो होने वाला है वो तो होके ही रहेगा। अगर ऐसा नहीं किया होता तो फिर रामायण राम रावण का युद्ध होता? ये तो होना ही था, मगर व्यवहार से है। अच्छा, कुदरती रचना में भी जैसे कृष्ण ने वॉर का, कृष्ण एक बड़े कारण बने वॉर होने के लिए, महाभारत। तो राम ने भी रावण का वध किया, तो वो कुदरती रचना होने पे भी इन लोगों ने सच का साथ दिया और गलत का वध किया। तो ये भी एग्जिस्टेंस का पुश है कि हम सही की तरफ ही चलें और गलत छूटता जाए। ये आप रिलेटिव सत्य की बात करते हैं या सनातन सत्य की? मुझे अब ये रिलेटिव सनातन नहीं बोल सकता मैं, लेकिन जो कुछ भी दुनिया में एक्शंस हैं वो सही के तरफ ही होने चाहिए। मैं यही कहता हूँ, आप दुनिया में जो कुछ भी कहोगे सही गलत, वो रिलेटिव व्यू पॉइंट होता है या यूनिवर्सल ट्रूथ? रिलेटिव, दैट्स इट। तो उसकी वैल्यू क्या है? इट्स अ व्यू पॉइंट ऑफ पर्सन। एक ही अवस्था को कोई सही भी कह सकते हैं, गलत भी कह सकते हैं, जरूरी भी कह सकते हैं, जरूरी नहीं भी, ऐसा भी कह सकते हैं। तो ये तो व्यू पॉइंट है, उसमें कोई सनातन सत्य नहीं। एक कहता है शादी करना ही चाहिए, एक कहता है क्या जरूरत है, तो आप किसको सही कहोगे, किसको गलत कहोगे? एक कहता है बच्चा होना चाहिए, दूसरा कहता है क्या जरूरत है भाई। तो ये तो व्यू पॉइंट होगा। तो व्यू पॉइंट में कोई सनातन सत्य नहीं है। हम तो जो बात करेंगे वो सनातन सत्य करेंगे, बाकी दुनिया तो रिलेटिव सत्य से चलती रहेगी, और इसलिए तो रागद्वेष होता है। When you know the value of relative truth, they create the raga and द्वेष, love and hate. यही तो संसार है, यही तो संसार है। आखिर कुदरत ने दुनिया बनाई है और कुदरत दुनिया चलाती है। तुम कौन कहने वाले के सही है कि गलत है? बताइए मेरे को। राम सही था या रावण सही था या रावण गलत था, वो रिलेटिव व्यू पॉइंट से आप बोल सकते हैं, मैं मना नहीं करता हूं। सनातन सत्य यही कुदरत की रचना है, इसमें न राग न द्वेष। राम के लिए राग नहीं और रावण के लिए द्वेष नहीं। मतलब स्वामी जी, हम अगर ऐसे ये जो बोल रहे हैं वैसे हम वैसे पुरुषार्थ करें, इनका कहना ये है, वैसे पुरुषार्थ करें कि हमको बुरा छोड़ना है, अच्छा ये तो शुभाशुभ मालूम है, वही तो रिलेटिव सत्य बोला ना। मगर उससे हमारे ऐसे होगा ना, उससे हमको संसार अच्छा मिलेगा, हाँ, मगर मुक्ति नहीं मिलेगी उससे। तो सवाल ही नहीं है। मैंने कहा ना कि अगर आपको संसार अच्छा बनाना है तो यू फॉलो द रिलीजन, देयर इज नो क्वेश्चन। सत्य बोलो, हिंसा न करो, झूठ मत बोलो, चोरी नहीं करो, व्यभिचार नहीं करो, परिग्रह कम रखो। वो कौन मना करता है? मगर वो प्रकृति के लिए करते हो या आत्मा के लिए करते हो? ये तो प्रकृति के लिए हुआ। तो आपको प्रकृति से परमात्मा की अनुभूति करना है या प्रकृति को अच्छा बनाना है? चूज एनी वन। तो इससे प्रकृति अच्छी बनेगी तो और क्या बनेगा? फिर अच्छी बनेगी भी बुरी भी बनेगी। आज अच्छी है तो कल बुरी बनेगी, तो दिन रात जैसा होगा, अच्छा बुरा तो वो रहेगा। आप ही कहोगे, एग्जाम्पल देता हूँ, आप ही कहोगे गुस्सा नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और संजोग आए तो आप भी गुस्सा करोगे। फिर दूसरे लोग आपको सलाह देंगे गुस्सा नहीं करना चाहिए, आपने स्वीकार कर लिया, फिर चालू हो गया गुस्सा नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, फिर किसी ने गुस्सा किया, आप इसको सलाह देते हैं। ये रिलेटिव सत्य है क्या सनातन सत्य है? ये ज्ञान की क्या जरूरत है? ये ज्ञान नहीं है, मगर व्यवहार में तो सही चलेगा। तो इससे कोई प्रगति नहीं। ये जन्म मरण की साइकिल है, वो कंफ्यूजन है, और इसीलिए लोग उसमें डूबे हुए हैं। कहता है ना लोक संज्ञा, प्रश्न पूछा था ना, लोक संज्ञा। लोग कहते हैं हम मानते हैं, सनातन सत्य क्या है वो हम नहीं मानते। हालांकि सनातन सत्य के बाहर कुछ है ही नहीं, मगर सनातन सत्य को देखते हैं रिलेटिव सत्य से, उसी को संसार कहते हैं। अगर सनातन सत्य को सनातन से देखोगे तो संसार नहीं है, राग द्वेष ही नहीं है, शरीर भी मेरा नहीं, अवस्था भी मेरी नहीं, जन्म मरण भी मेरा नहीं, सत्ता संपत्ति संबंध और साधन भी मेरा नहीं,
तो मेरा नहीं तो किसका है? कुदरत का था, कुदरत का है और कुदरत के पास ही रहेगा। ये शरीर की राख भी किसके पास रहेगी? क्योंकि है किसकी? कुदरत की। तो रहेगी किसके पास? हमारी नहीं है तो नहीं रहेगी। और सत्ता संपत्ति संबंध और साधन हमारा नहीं है तो नहीं रहेगा। आप मानो यार, आप नहीं मानोगे तो भी क्या रहेगी? तो खत्म हो गई बात। कुदरत का था, कुदरत का है और कुदरत के पास ही रहेगा। आपने, आपको कुदरत ने दिया है एज अ यूजर, नॉट ओनर। और आप मालिक बन गए तो फिर मार खाना पड़ेगा। है कुदरत का। अब अगर आप मालिक बन गए, कुदरत ने आपको दिया, किसके लिए दिया? सफरिंग के लिए, कर्मों की भुगतान के लिए। अगर पुण्य का संजोग है तो अच्छा संजोग दिया, पाप का है तो बुरा दिया, मगर किसके लिए दिया? सफरिंग के लिए। मगर आप उसमें ओनर डूअर नहीं है। इट इज कंपल्सरी फॉर यू। आप तो ऑब्जर्वर रहोगे तो न राग होगा न द्वेष होगा और पुराना हिसाब खत्म हो जाएगा। अगर कुदरती रचना को कुदरती रचना नहीं देखोगे तो राग द्वेष होना ही एक ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं है। तो कुदरती रचना क्यों कहते हैं? क्योंकि कुदरती रचना है। अगर हम नहीं कहेंगे तो भी है। तो फिर कुदरती रचना है और हम समझते हैं तो फिर देखने में क्या तकलीफ है? बोलते नहीं है। Recording stopped. જય જય સચ્ચિદાનંદ. બ્રેક લઈ લો 2 મિનિટ. ના પછી લાંબુ થઈ જશે, રહેવા દો. हाँ, आपको समझ में आया प्रभु? और एक और पॉइंट है थोड़ा लाउडली जरा रिकॉर्डिंग में आ जाए। Recording in progress. स्वामी जी, ये हम हर पल सोचते हैं कि ये करूं या ये करूं, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास चॉइस है, और एनालाइज भी कर रहा हूँ उसको और डिसाइड भी कर रहा हूँ कि ये करूं या ये, और मैं एक ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ। करेक्ट। अब ये चॉइस भी अगर मेरे हाथ में कुछ भी नहीं, जैसे सांस लेना भी मेरे हाथ में नहीं है, तो ये थोड़ा सा द्वंद्व हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि अगर कुछ भी मेरे हाथ में नहीं है और ये मैं भी डिसाइड कर सकता हूँ ए और बी, और मैं बी सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो अगर मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है तो ये सिलेक्शन प्रोसेस भी प्री डिसाइडेड है। यही हुआ। देखो, आपको शायद मालूम होगा कि स्टॉक मार्केट में हम ही सिलेक्ट करते हैं और लॉस भी होता है। वाई? क्योंकि उसमें बहुत सारे वेरिएबल्स हमारे हाथ में नहीं है। हमारे को जितना आपको लॉस है ना, और लॉस होना है तो वही पिक करोगे, और प्रॉफिट होना है तो यही पिक करोगे। आपको लगता है कि मेरे पास चॉइस है, चॉइस नहीं है। कुदरत आपको करवाती है, मगर आप मानते हैं मैं करता हूँ, बस है नहीं आपके हाथ में। आप वही पिक करोगे एज पर योर कर्म फल। बुद्धि से आप बोल सकते हो कि मैंने पिक किया है, दिस इज माई चॉइस, ऐसा व्यवहार से बोल सकते हैं, मगर है नहीं। कुदरत आपको वही जगह पे ले जाएगा जहां तुम्हारा हिसाब है। हम समझते हैं चॉइस है। एक वर्ल्ड चैंपियन था, वर्ल्ड चैंपियन रनर, सब दौड़ने वाला वर्ल्ड चैंपियन। उनकी दौड़ की कैसी होगी? बेस्ट। और उसकी उम्र अभी हो गई 50 साल की। कितनी हो गई? 50 साल की। हेल्दी था। यमराज इसको लेने के लिए आया। इट्स अ स्टोरी, मगर मैसेज मेरा अलग है। तो यमराज इसको लेने के लिए आया, तो वो बोलता है कि मैं तो हट्टा कट्टा हूं, मेरी कैसे डेथ होगी? कोई गलत नाम होगा आपके पास, यमराज के पास, ऐसा बोला। यमराज ने कहा हमारे पास तो गलती नहीं होती है। तो फिर भी वो नहीं माना, बोला नहीं नहीं मैं नहीं हूँ और कोई होगा। तो यमराज ने पकड़ने की कोशिश किया तो वो भागा। और आप बताओ, गोल्ड मेडल के लिए ज्यादा भागेगा या जीने के लिए? तो वो 1 2 3 4 5, क्योंकि
बचना ही तो था। आगे वो रनर भागता है और पीछे यमराज। तो 8-10 किलोमीटर स्पीड से भागा आदमी और वहां अटैक आके मर गया। तब यमराज को मालूम हुआ, यमराज को, कि व्यक्ति तो यही था मगर प्लेस और टाइम यही नहीं था। इसीलिए वो भागा और जहाँ प्लेस और टाइम खत्म हुआ वहां वो मर गया। सही जगह। वे टू डेथ। वो टाइम से वो क्या समझा? वे टू सर्वाइव। और कुदरत ने क्या किया? वे टू समझ में आया? हमको तो लगा हम बचने के लिए दौड़ते हैं, और कुदरत ने क्या किया? मरने के लिए दौड़ते हो। समझ में आया ना? तो ये समझना है भैया, हम अपनी बुद्धि से जो कुछ भी करते हैं ना, ये आज की बुद्धि नहीं है, ये बुद्धि लेकर आए डिस्चार्ज के रूप में, और वही डिसीजन देगी जो आपका हिसाब होगा। मगर हम समझते हैं आज हम स्वतंत्रता से कुछ भी सोचते हैं, ये गलत है। वो अर्जुन का भी है स्वामी जी, महाभारत का युद्ध वो जीता था बहुत बड़ी अच्छे से, मगर किसी के सामने, भील के सामने कुछ हो गया था ना उनका, ऐसा वही बाणावली बोलते हैं ना, वही धनुष वही बाण, काबे अर्जुन लूटियो वही धनुष वही बाण। जो बाण से महाभारत जीता वो सिर्फ एक काबा ने, काबा का मतलब होता है जो कबीला होता है ना, उसका सरदार को काबा बोलते हैं, एक ही सरदार ने उसको लूट लिया, वही धनुष से बाण था फिर भी, और पूरा महाभारत वही बाण से जीता है। यानी टाइमिंग का प्रश्न है क्या? उसमें पावर की बात नहीं है। फिर इतिहास में तो लोग लगा देते थे कि चलो भी उस समय कृष्ण था इसीलिए ऐसा, वो इट्स स्टोरी, वो तो ऐसा बताना पड़ता है ना, एक व्यक्ति को इम्पोर्टेंट देना है तो ऐसा बताना पड़ेगा। पर ठीक है, मगर है कर्मों का फल। यहाँ जीता वो भी कर्म फल है और यहाँ हार गया वो भी कर्म फल है। इसमें दोनों में से कोई जगह पे उनकी चॉइस नहीं है। समझ में आया? और इसीलिए मैंने कहा यह अध्यात्म विज्ञान आपके हर प्रकार के रिलेटिव पुरुषार्थ को समाप्त कर देगा। परिणाम रहेगा पुरुषार्थ के रूप में नहीं रहेगा। वही सोच रहेगी, वही बुद्धि रहेगी, वही अहंकार रहेगा, वही माइंड रहेगा, वही स्पीच रहेगी, वही एक्शन रहेगा, मगर परिणाम के रूप में दिखेंगे आप। और सामने वाला का भी परिणाम के रूप में देखेंगे, पुरुषार्थ के रूप में नहीं देखेंगे। समझ में आया? समाप्त हो जाएगी बुद्धि ही आपकी, नया क्रिएशन समाप्त हो जाएगा अगर ये इफ यू फॉलो द यूनिवर्सल ट्रूथ साइंस। स्वामी जी बुद्धि तो मतलब वही ना, चार्ज वाली जो है वो समय हो जाएगी ना, डिस्चार्ज तो रहेगी ना काम के लिए। डिस्चार्ज वाली जो डिस्चार्ज हो रही है वो चार्ज कब होगा? जब तुम्हारे पास विजन रिलेटिव सत्य का होगा। तो जब तुम्हारे पास यूनिवर्सल ट्रूथ विजन है और डिस्चार्ज में रिलेटिव सत्य है तो वो आपका सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि वो तो कुदरती रचना है। प्रकृति तो मारामारी भी करेगी मगर वो कुदरती रचना, ये प्रकृति रागद्वेष भी करेगी मगर वो कुदरती रचना। मगर जिंदा तुम हो, प्रकृति जिंदी नहीं है। प्रकृति हर समय विदाउट चॉइस मर ही रही है। यस के नो? तो जो मर रही है उसको जीवन कहोगे? जीवन अंदर है, जहां आपकी जागृति है, अवेयरनेस है, पुरुषार्थ है, वहां आपका लाइफ है, जिससे नई लाइफ मिलेगी। ये लाइफ तो क्या है? मैकेनिकल है, ऑटोमोटिव। इसको लाइफ कैसे कहोगे? ये तो रिजल्ट है, निकल रहा है, exhaust and destroy all the moment and without choice। जहां हमारे पास फ्रीडम है वो अंदर है पुरुषार्थ करने की, बाहर नहीं है। राम को भी वनवास जाना ही पड़ा, नो पुरुषार्थ। राम की सीता उठा के ले गए, नो पुरुषार्थ। कृष्ण भगवान का जन्म जेल में हुआ, नो पुरुषार्थ। रिजल्ट में पुरुषार्थ नहीं होता है, कंपलसरी में पुरुषार्थ नहीं होता है।
और एग्ज़ाम में पुरुषार्थ है, वो अंदर होती है, वो बाहर एग्ज़ाम दिखती नहीं है, और जो 5 सेंसेस से दिखता है वो सब रिजल्ट है। समझ में आया? ये 5 इंद्रियों से जो अनुभव में आता है सब रिजल्ट है, इसका भी होगा या पूरी दुनिया का, वो रिजल्ट है, वहाँ एग्ज़ाम है ही नहीं। स्वामी जी, एक शायद मैं लास्ट टाइम पूछा था, हमको याद नहीं आ रहा है, एक थोड़ा लाउडली, एक पूना की एक लड़की का नाम है अनीता मरजानी, वो हांगकांग में रहती है और उसको कैंसर हो गया था। हो गया था, आपने शायद पढ़ा होगा, लिविंग फॉर डाइंग टू लिव, लिविंग टू डाई, सब, हाँ, लिविंग टू डाई। ये इसको कैंसर हो गया था और लास्ट स्टेज का कैंसर था, और लास्ट स्टेज का कैंसर मतलब पूरे बॉडी पे ना से ट्यूमर्स हो गए थे, और एक एक जैसे लेमन के साइज के ट्यूमर। शी वाज टोटली लाइक ए स्केलेटन, और पूरा रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी हो गया। डॉक्टर्स ने कहा कि नाउ अनदर फ्यू डेज मोर, और वो अपने रिलेटिव्स को के सब बुलाती है, तो पूना से उसका भाई भी जाता है हांगकांग, और वो प्लेन में है, और इस समय उसका आईसीयू में उसकी डेथ हो जाती है। शी डाइड। समझा नहीं, रिपीट अगेन। उसकी डेथ हो जाती है। कौन प्लेन में है? उसका ब्रदर आ रहा है। ओके ओके, आई एम कंफ्यूज। बहन को कैंसर है, भाई आ रहा है, और भी रिलेटिव्स वगैरह आए हैं, और उसकी डेथ हो जाती है। ओके, ये सच्ची कहानी है। हाँ बोले, कोई बात नहीं, मैं सुन रहा हूँ। और डेथ होने के बाद में वो कहती है कि मैं अपना ये आईसीयू में ना 12 फीट ऊपर वहां चली जाती है, और वहां से वो अपना बॉडी भी देखती है। रूम के बाहर उसके पेरेंट्स, उसका हस्बैंड, दे वर क्राइंग, दे वर टॉकिंग टू डॉक्टर्स, वो सब उसको दिख रहा है। वो प्लेन में भी उसका भाई क्या सोचता है वो सब भी देख रही है कि भाई क्या सोच रहा है अभी। और वो उसको उसके फादर की डेथ हो चुकी होती है पहले ही, तो फादर उसको लेने के लिए, जैसे कि ऊपर उसको सीलिंग के पास उसके फादर लाइक एन एंजल उसको लेने के लिए रिसीव करने आए हैं। ओके, और वो उनके साथ चली जाती है। ओके, और वो वहाँ का बताती है कि इट वाज लाइक अ वेरी वेरी, एक बताते हैं कि जैसे कि जो भी नियर डेथ एक्सपीरियंस के वीडियोस हैं कि वो एक टनल, डार्क टनल से निकलते हैं, और फिर वहाँ पे आगे क्रॉस होके एक बहुत ही सुंदर, फुल ऑफ लव, ऐसी कुछ पैराडाइज जैसी जगह होती है, सोल्स वहाँ जाती हैं, और वहाँ वो इसको इतना अच्छा लगता है वो वापस नहीं आना चाहती है। और फिर वहाँ उसको मैसेज ये मिलता है, नो योर टाइम इज नॉट ओवर, यू हैव टू गो बैक। और वो मना करती कि नहीं, आई वांट टू बी हियर ओनली। और उसको वापस इंस्ट्रक्शन मिलता है कि यू टू गो बैक। ओके, और वो वापस आ जाती है। मतलब जन्म शरीर में बर्थ हो जाता है, मतलब उसका लाइव हो जाती है। वही जो डेड शरीर था वो लाइव हो गया। हाँ, जिसको डेथ सर्टिफिकेट भी बन चुका है, डॉक्टर्स ने साइन कर दिया है वो, क्योंकि वो बॉडी हटानी है ना, तो साइन भी हो गया है, पर वो अवेक हो जाती है, वापस बैठ जाती है, मतलब एग्जाम्पल। और उसके सारे कैंसर के ट्यूमर्स 1 हफ्ते में खत्म हो जाते हैं। ओके, आफ्टर। और अभी भी वो जिंदा है आज, और शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल वुमन। उसका पूरा सब शरीर ठीक हो गया है। ओके, और वो अभी थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ लोगों को हेल्प कर रही है। तो ये इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे, ये क्या हुआ है? ये थोड़ा अपने इसमें सनातन सत्य से बताओ। देखो, आत्मा शरीर से बाहर नहीं निकल के ये ब्रह्मरंध्र में चला जाता है। ब्रह्मरंध्र, उस समय बॉडी डेड बॉडी हो जाती है। डॉक्टर की भाषा में वो मर गया। हमारे योगी जो होते हैं वो आत्मा को यहाँ खींच के ले जाएंगे, तो ये बॉडी डेड हो गई, श्वास भी नहीं चलेंगे, कोई एक्टिविटीज नहीं रहेगी, ब्लड सर्कुलेशन सब कुछ बंद हो जाएगा, सब कुछ बंद हो जाएगा। मगर वो मरा नहीं है। क्या नहीं है?
मरा नहीं है। वो आत्मा जिनके पास शक्ति होती है, वो आत्मा बाहर निकल के ब्रह्मांड के कोई भी अवस्थाओं का अनुभव कर सकते हैं। उनके पास फिजिकल बॉडी नहीं है। उनके साथ वो जब आकाश में घूमते हैं तो उनके पास फिजिकल बॉडी नहीं है। तो फिजिकल बॉडी न होने के कारण वो कहीं भी जा सकते हैं। इट्स नॉट रिक्वायर एनी पुट अप एनी एफर्ट। ओके, जस्ट लाइक अ फ्लाई, ये करते हैं। और हमारे कहीं योगी पहले ज़माने में उड़ के हजारों माइल जाते थे। जैसे आज पक्षी जाते हैं, वो तो फिजिकल जाते हैं, ये नॉन फिजिकल होता है, दिखता नहीं है, तो ये जाते हैं और वहाँ का दृश्य वो देख सकते हैं। क्या बताया? देख सकते हैं। अभी प्रश्न ये आता है कि आत्मा जो है, मूल आत्मा, उसके पास तो विनाशी अवस्थाओं को देखने जानने की शक्ति नहीं है। क्या बताया? विनाशी अवस्था को देखने जानने की शक्ति नहीं है। प्रकाशित करने की शक्ति है, प्रकाशित, लाइट, एनलाइटन कर सकते हैं, देख नहीं सकते। तो उस समय उनका जो लाइव प्रतिष्ठित आत्मा है वो उनके साथ कैरी ऑन होता है, एंड दे रियलाइज। यू अंडरस्टैंड? मूल आत्मा विनाशी अवस्थाओं को प्रकाशित कर सकता है, देखता जानता नहीं है, मगर प्रतिष्ठित आत्मा इसको देख सकता है, जान सकता है और एक्सप्लेन भी कर सकता है आफ्टर। जैसे किताब में लिखा, प्रतिष्ठित आत्मा और इसमें प्रतिष्ठित आत्मा का मतलब होता है प्रतिष्ठा करने वाला, मन वचन काया और दुनिया को रियलाइज करने वाला विथ इज व्यू पॉइंट। बस जिसके पास जो ज्ञान दर्शन है उसके मुताबिक वो अनुभव करेगा। दुनिया वही क्यों बह रहेगी, मगर मेरे ज्ञान दर्शन से जो दुनिया दिखती है, आपके ज्ञान दर्शन से आपको दिखेगी, उनके ज्ञान दर्शन उनको दिखेगी। दुनिया तो एक ही है। अच्छा, इसमें फिर वो अनीता मरजानी का जो पूछा उसको कि ये क्यों कैंसर जो कि ठीक ही नहीं हो सकता था, वो कैसे डिसअपियर हो गया, सब ठीक हो गया? फिर तो उसने ये कहा कि मैं बहुत फियरफुल होती थी पहले, और उसको इनसिक्योरिटी भी थी, वहाँ पे जहाँ रहती थी, घर की, हस्बैंड, जॉब, पैसा जो भी था, फैमिली, इनसिक्योरिटी, टेंशन्स और नॉन एक्सेप्टेंस वाली सिचुएशन थी। जो भी उसके लाइफ में प्रॉब्लम्स थी वो कहीं ना कहीं नॉन एक्सेप्टेंस था उसको। समझ गया। और कैंसर उसमें बहुत पीक पे नॉन एक्सेप्टेंस पे ले आया, उसी नॉन एक्सेप्ट। और जब सभी ट्रीटमेंट खत्म हो गए, जब डेथ ही थी एकदम सामने, तो अचानक से अंदर उसके कुछ हुआ और वो एकदम टोटल एक्सेप्टेंस में आ गई। उन्होंने क्या कहा? उसने कहा कि जैसे ही मेरे अंदर से 100% एक्सेप्टेंस की सिचुएशन आ गई, ये सारी चीजें ठीक हो गई। कहीं भी जरा सा भी नॉन एक्सेप्टेंस जब तक चलता रहा तब तक वो रेजिस्टेंस था उसका, और वो चीज नहीं समझ में आई मुझे, कहाँ पूरा 100% एक्सेप्टेंस हो गया और वो ठीक हो गई। ये चमत्कार तो नहीं है, मगर हाँ व्यवहार से चमत्कार जरूर लगेगा कि एकदम से इतना हाई लेवल का डिसीज एकदम 1 वीक में रिमूव हो जाना, ये असाधारण घटना है, नॉर्मल बात नहीं है, मानता हूँ। मगर कभी कभी ऐसी कोई चमत्कारिक शक्ति उदय कर्म के अधीन प्रकट हो गए इस प्रकार का बिहेव कर सकती है। कोई देवी देवता भी कर सकता है, वो भी कर्म फल के अधीन, और अंदर भी ऐसा हो सकता है। जैसे बुरा करने के संजोग लाए, ऐसा अच्छा करने के भी संजोग लाए होंगे। जैसे लोन लेने के संजोग लाए तो रीपे करने के भी संजोग लाए होंगे। आप समझे ना? तो ऐसा हो सकता है 2 प्रकार, या कोई देवी देवता भी कर सकते हैं, या तो उनके पास कोई ऐसा पावर। इससे कहीं आपने शायद सुना होगा कि जब क्राइस्ट, लॉर्ड क्राइस्ट की बात करता हूँ, कि जब क्राइस्ट लोगों को दुखी देखते थे तो वो सिर्फ ऐसे वो करते थे तो वो अच्छे हो जाते थे। ऐसा कुछ, जो भी रैकी कहो या जो भी कहो, इन हिज लैंग्वेज, ओके।
तो अच्छे हो जाते थे। तो ऐसा कोई चमत्कार नहीं है, आप समझे ना, मगर एक नैमित्तिक चमत्कार बन जाता है, आप समझे ना। एक पायस व्यक्तियों का जो पावर होता है और उसके निमित्त से उसको अच्छा होना है, वो स्वतंत्र नहीं है, आप समझे ना। उसको तो व्रत सम पे जाना पड़ा ना कि वो मिटा सके, वो नहीं मिटा सके ना, बस उनका जो रोल था वो किया, जिसको अच्छा करने के निमित्त थे तो उन्होंने किया। उसका मतलब भी नहीं कि उनके पास इंडिपेंडेंट पावर था, ये भी कुदरती रचना या कर्मों का फल। समझ में आया? अच्छा, ऐसा हो सकता है। उसको पहले बहुत डेथ का फियर वगैरह होता था, लेकिन इस एक्सपीरियंस के बाद अब उसका फियर चला गया। अब उसको पता है कि उसका फियर चला गया। क्यों? क्योंकि उसको मालूम हो गया कि रियल स्पीकिंग आई एम सेपरेट देन द बॉडी। हाँ, डेथ जैसी कोई चीज नहीं। ये भी तो अनुभव हुआ ना। हाँ, ये कुछ अनुभव, एक्सीडेंटल अनुभव। अभी आप समझ गए, डेथ तो बॉडी का होता है, मेरा नहीं है। वन काइंड ऑफ, इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। हाँ। तो जो डेथ के साथ उनका जो कनेक्शन था, लगाव था, और इसका जो फियर था, वो जीरो हो गया। उनको मालूम हो कि आई एम नॉट बॉडी। अगर मैं बॉडी होती तो वहां कौन गया था? तो मैं बॉडी से अलग हूं, ये उनको अनुभव हुआ। तो बॉडी था, मगर वो बॉडी, मैं बॉडी, वो बिलीव नहीं रही, बिलीफ टूट गया। इसके लिए प्रीवियसली पुरुषार्थ होना चाहिए स्वामी जी, उसका ही आया होगा। वो तो रिजल्ट है ना, मैंने कहा रिजल्ट है, रिजल्ट मतलब डिसाइडेड नहीं। हाँ, कॉजल, पुराना कॉजल का यहाँ रिजल्ट डिस्चार्ज हो गया है। वो मैंने कहा ना कि ऐसा हो सकता है। अनुभव भी एक संजोग ही तो अनुभव देता है। कुछ अच्छा किया होगा पिछले जन्म में, वो यहाँ जो भी एक ये अनुभव करने का भी एक संजोग है ना। ये अनुभव करने का आज मैं आप सबको विज्ञान बता रहा हूँ, और विज्ञान समझने के बाद आप जीवन में इसका उपयोग करोगे तो आपको मुक्तता की अनुभूति होगी। आदि व्याधि उपाधि में भी समाधि रहेगी। तो यहाँ क्या कोई चमत्कार है? इट्स योर विजन, यू अप्लाई इन योर सर्कमस्टेंसेस एंड यू कैन रियलाइज द फैक्ट। अगर वो नहीं होता है विज्ञान, तो आप रिलेटिव सत्य डूब जाओ और वही सफरिंग को और ज्यादा अनुभव करो। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों में से कोई चमत्कार नहीं है। मगर स्वामी जी, ये बॉडी से जो सेपरेशन है वो हमारा अध्यात्म विज्ञान का पुरुषार्थ है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सेपरेशन फील करना, हाँ, okay? तो अनुभव हमको आता है, वो उसका पुरुषार्थ है, बराबर है ना। तो वो जो पुरुषार्थ हमारा जो है सेपरेशन का जो है, हाँ, तो उनकी पूरी लाइफ में तो ऐसा कुछ भी नहीं था, बराबर है। तो ये उनको एट द टाइम ऑफ जो बोलते हैं उनका जो आत्मा है यहाँ पर फंस गया, यानी ब्रह्मरंध्र में, उसके बाद बाहर निकलता है। हाँ, उसके बाद में उसको ऐसे ही, तभी ऐसे ये हुआ। तो ऐसा कहा जा सकता है ना कि वो कहीं ना कहीं उसका पीछे का भी कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होना चाहिए। पीछे का ही था। ये तो रिजल्ट आया ना, रिजल्ट आया, वही रिजल्ट का मतलब एग्जाम तो दिया था। बराबर है। आज आपको कोई अनुभवी ज्ञानी मिलता है या कोई बुरा व्यक्ति मिलता है, बुरा व्यक्ति मिलता है तो आपकी लाइफ टर्न हो जाती है, अच्छा मिलता है तो भी टर्न हो जाती है। तो क्या उन्होंने टर्न किया, या आपका टर्न होना है तो संजोग मिला? व्यवहार से क्या कहेंगे, उनसे हुआ। सही बात। तो वो तो होगा, रिलेटिव भाषा तो रहेगी ना व्यवहार में। कॉज एंड इफेक्ट तो चल ही रहा है। कॉज एंड इफेक्ट ही है वो फाइनल, वो साइंस है। बाकी तो इससे हुआ, इससे हुआ, इससे, वो रिलेटिव सत्य है। આપણે કાઠિયાવાડમાં એવું હોય છે, જ્યારે વ્યક્તિ કોઈ ડેથ થઈ જાય પછી જ્યારે લઈને જવાના હોય એને અંતિમ યાત્રા માટે, ત્યારે એના કાનમાં એક પોક નાખે છે. એ મરી ગયા પછી કે પહેલા? મરી ગયા પછી. ઓકે. એ હવે અમારે ત્યાં સુરેન્દ્રનગર ભાવનગર જિલ્લામાં તો આ અનુભવ મેં કર્યો છે. એ પોક નાખે, એટલે પોક નાખે એનો મતલબ એ કાનમાં કોઈ બી દીકરો હોય અથવા દીકરી હોય અથવા ફેમિલી મેમ્બર, તો જે એનો જીવ કદાચ જે સબકોન્શિયસમાં રહી ગયો હોય તો મે બી પાછો બી આવી જાય અથવા એ ત્યાંથી રિલીઝ બી થઈ જાય. તો जैसे भाई ने बताया, ऐसा ही एक एक्सपीरियंस मेरे पड़ोस में हुआ. मैं शायद 9th या 10th में था और भावनगर में उस टाइम में पढ़ता था. तो
एक पटेल फैमिली रहा करती थी, उनकी बड़ी डॉटर की कुछ गिरने से डेथ हो गई और सब रिलेटिव्स आ गए और उसको रेडी करके लेके जा रहे थे और उसके बेटे ने ये पोक डाली एंड शी सडनली कम बैक टू द लाइफ। लेकिन उसको कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ था, लेकिन आज भी हम उसको देखते हैं तो उसका जो एक स्ट्रक्चर है वो थोड़ा आपको डर लगे वैसा हो गया है। शी गॉट समथिंग ऑन हर फेस जो चीजें जा नहीं रही है ऐसे। हाँ, सडनली कुछ ज्यादा से पिंपल्स आ गए हैं एंड वो शायद बहुत साइलेंट हो गई है। आप उसको 4 बार कुछ पूछेंगे तो ही वो आपको पलट के आंसर करेगी, बट शी इज वेल, शी इज ब्रीदिंग एंड शी इज गुड। लेकिन ये एक आपने जो बताया तो मैं उससे रिलेट किया, मेरा एक्सपीरियंस है कि वो यहाँ पे किधर रहता है और इसको शास्त्रीय परिभाषा में इसको ब्रह्मरंध्र कहते हैं, ब्रह्मरंध्र। और शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि इस प्रकार से अगर जीव यहाँ से जाता है तो मोक्ष में जाता है, और ये 5 सेंसेस में जाता है इसमें से तो उद्वगति जाता है। मोक्ष और उद्वगति दोनों अलग चीज है। उद्वगति हाँ, और यहाँ से लेट्रिन से जाता है तो वो अधोगति। आप समझे? That is the symptoms shows in our books। किताबों में ये लिखा है, यहाँ से नीचे जाएगा तो अधोगति जाएगा, मतलब सिम्टम्स कमिंग इवेंट कास्ट देयर शैडोज बिफोर। तो ये यहाँ से जाता है तो उद्वगति, यानी अच्छा मनुष्य को मिल सकता है, देवलोक में मिल सकता है, अच्छी लाइफ भी मिल सकती है, यहाँ से जाता है। और यहाँ से जाता है तो मोक्ष। लेकिन ये पता कैसे चलता है? How one can realize that? वो तो जब कई लोग कहते हैं ना कि मरते समय आँख खुले रह गए, मरते समय मुंह खुला रह गया, मरते समय लैट्रिन हो गई, कुछ भी ये सिम्टम्स दिखता है समाज में। वो कभी दिखता भी है, कभी नहीं भी दिखता है, लोगों को नहीं भी समझ में आता है, ऐसा हो सकता है। मैं आई एम नॉट श्योर कि सब कुछ दिखता ही है, नहीं भी दिखेगा लोगों को। मगर अगर आप जान सकते हैं तो ये सिम्टम्स आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा। आम आदमी नहीं भी जानते हैं तो मतलब नहीं जानेंगे, फिर भी रिजल्ट तो वही रहेगा। ये तो सिम्टम्स की बात है, अगर आप जानो या ना भी जानो, ये सिम्टम्स की बात है कि ऐसा ऐसा कहा गया है हमारे शास्त्रों में। आप जानो ना जानो, अगर नहीं जानोगे तो भी यहाँ से जाएगा तो उद्वगति ही जाएगा, आप नहीं जानोगे तो भी। इसलिए आपके जानने ना जानने से कोई मतलब नहीं है, ये तो वन काइंड ऑफ नॉलेज, ये मैं कहना चाहता हूँ। है तो फिक्स, क्योंकि वो चला गया, इसमें आप नहीं जानोगे तो भी क्या फर्क रहेगा, उनका तो एग्जिट हो गया। स्वामी जी, एक तिब्बत में ना एक बार्दो नाम की एक टेक्निक है, आपको मालूम होगा। बोलिए। तो उसमें जैसे कोई मर जाता है, उसके 48 आवर्स बाद तक उस सोल को हेल्प किया जा सकता है। तो मेरी मासी की डेथ हुई थी 4-5 साल पहले। वो काफी मेडिटेशन करती थी, अहमदाबाद में रहती थी। तो डेथ होने के एक्चुअली उनका बेटा भी डॉक्टर और हस्बैंड भी डॉक्टर, और फिर भी डेथ आनी है तो घर में 2 डॉक्टर, फिर भी डेथ हो गई। डॉक्टर की खुद की भी होती है ना, डॉक्टर की भी खुद की होती है। बोलिए कोई बात नहीं, बोलिए। तो अभी डेथ हो गई। अब डेथ होने के बाद ना उनको काफी सफोकेशन हो रहा था, पेट में दर्द था, एंड देन डेथ के बाद नहीं, डेथ होते वक्त ओके। तो उनका बेटा भी प्लास्टिक सर्जन है, उसने मुंह से हेल्प किया रेस्पिरेशन के लिए। ओके। और फिर he could not do to save her and she passed away। फिर उन्होंने वहाँ पे एक सिविल हॉस्पिटल है, वहाँ ले गए और फिर वापस लेके आए। एंड देन फिर उसके बाद ये बार्दो टेक्निक से ना उन्होंने थोड़ा हेल्प किया कि भाई थोड़ा मेडिटेटिव एनवायरनमेंट रखें घर में, थोड़ा प्रेयर्स और भजन एंड कुछ म्यूजिक ऐसा लगा के पीपल वर सिटिंग मेडिटेटिंग। उसके बाद 10-12 घंटे बाद तक ना मासी का चेहरा एकदम स्माइलिंग हो गया।
तो वो पहला वाली फोटो और बाद वाली फोटो में फर्क है। ओके। जब डेथ हुई तब की फोटो में इट वाज लाइक अ स्ट्रेसफुल एग्जिट, समझ गया। और ये कुछ घंटों के बाद में चेहरे पे एक स्माइल, हल्की सी स्माइल आ गई। समझ गया। फिर तो वो पूछना है मेरे को कि ये जो बारडो टेक्निक है वो क्या सोल्स को जाते वक्त में थोड़ा हेल्प करती है या क्या है ये? इट्स अ साइकोलॉजी। ये तो जब मरते हैं तब तनाव होता है, मर जाने के बाद रिलैक्स हो जाते हैं बॉडी, पर तनाव तो है ही नहीं, तो अपने आप अच्छा हो जाता है सभी का। एक मरते समय का जो सीन होता है पेनफुल, वो एक अलग परिस्थिति है। फिर मर जाने के बाद जब आत्मा निकल गया तो फिर पेन तो है ही, सब्जेक्ट ही नहीं है, तो बॉडी क्या हो गया, नॉर्मल हो गया, उसको अभी फीलिंग नहीं है, तो वो सहज लगता है, सहज समझते ना, नो फीलिंग, अच्छी भी नहीं है बुरी भी नहीं है, नॉर्मल हो गया, क्योंकि चेतन निकल गया है ना, तो जड़ अपने स्वभाव में आ गए, मगर वो स्वभाव में लाइवनेस नहीं है, मगर ये नॉर्मल हो गया। कई लोगों को ऐसा होता है, आपने एग्जांपल दिया ना वो लड़की का, मेरे फादर को ऐसा हुआ था कि मेरे फादर को वो खरजवा बोलते हैं, क्या आप इसको बोलते हैं, वो कभी, और वो भी उनका लीला खरजवा था, यानी कभी एंड नहीं होता है, थोड़े समय के लिए चमड़ी आ जाती है फिर फूट जाता है, फिर चमड़ी आ जाती है फिर फूट जाता है, यानी इसको लीला बोलते हैं। ड्राई का मतलब एक बार खत्म हो गया फिर दूसरा बार नहीं आएगा, तो उनको मेरे फादर को लीला खरजवा था, पूरी मतलब 15-20 साल तक रहा, उनको बहुत सारे ऑपरेशन भी किए, बहुत कुछ किया उन्होंने, प्रयास, दवाइयाँ, आयुर्वेदिक, एलोपैथी, जो भी कहो, मगर उसके जब डेथ का समय आ गया तो उनका बिल्कुल पग नॉर्मल हो गया। ये हमने देखा था, उनके पाँव में एक्सट्रीम समय, उस समय नहीं पर एक्सट्रीम समय में बड़े बड़े कीड़े होते, कीड़े समझते हैं ना, ऐसे घूमते थे, मैं चिपिया से निकालता था, इतना पाँव के ऊपर के भाग में, ये भाग है पाँव का, इसमें, और उसको पेन भी होता ही होगा उसमें, मैं तो हम तो एजम्पशन करते हैं, तो बहुत पेन होता था, फिर मैं उसके ऊपर वो क्या कहते हैं डेटोल का पानी डालता था, वो ऊपर आते थे, फिर मैं उसको खींच लेता था, फिर उसको राहत होती थी, फिर वो सो जाते थे, नहीं तो वो सो भी नहीं पाते थे। तो ऐसा होता है, मैंने कहा नॉर्मल हो जाते हैं, मतलब रोग चला गया कि रहा वो तो सब्जेक्ट नहीं है, बॉडी नॉर्मल हो गया, बस अभी जो सफरिंग था वो तो खत्म हो गया है ना, आत्मा नहीं है तो सफरिंग तो है ही नहीं, फिर उसको जलाओ भी तो भी क्या फर्क होगा, तो डिस्चार्ज का जितना सफरिंग था वो पूरा खत्म हो गया, अभी तो नॉर्मल हो गया, अभी उसको फीलिंग भी नहीं है कि पेन कुछ भी नहीं है, बॉडी आत्मा ही नहीं है, तो फिर तो ऐसा हो सकता है, ऐसा आपने कहा ना, ऐसा हो सकता है। मेरे फादर के बारे में मैंने जो देखा था वो कहा, मैंने फिजिकल देखा था, और मेरी आंखों के सामने मेरे फादर मेरे मदर दोनों मेरी आंखों के सामने गुजर गए, दोनों ही। तो मतलब कहने का मतलब ये है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। आपको क्या प्रश्न करना है, कुछ प्रश्न करना है तो कीजिए, यू हैव आस्क्ड द क्वेश्चन। नहीं, मेरे हिसाब से तो काफी चीजें क्लियर हो गई, और नहीं और भी कुछ अनक्लियर है तो पूछ सकते हैं, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं कि पूछना, मगर जो अनक्लियर है, डाउट है, तो आप प्रश्न कर सकते हैं, मेरा कहने का मतलब है। नहीं, जे પણ તમને ડાઉટફુલ લાગતું હોય તો પૂછી લો। ના, ખરેખર 2-4 દિવસથી થોડી સ્ટ્રેસ હતી, અને અચાનકથી બેનનો મેસેજ આવ્યો, જેમ આપણે કીધું ને કે આ એક કુદરતનો નિયમ છે, અને એવી રીતે પીકેમ, અને ખરેખર જે 2-3 વસ્તુથી જૂજતા હતા એ ખરેખર ક્લિયર થયું, એટલે સેટિસ્ફેક્શન છે અત્યારે, હવે નવું કંઈ એમ કે હજુ 2 દિવસ છે, અવાય તો આવજો। જરૂર ના જસ્ટ તમને હું કહું છું, ના વાય નોટ, સેમ ટાઈમ 6 to 8 છે, આવો તમે, પ્રશ્ન લઈને આવો, યાદ આવે તો લખીને લાવજો, હું બધા પ્રશ્નના જવાબ તમને સાયન્ટિફિક આપીશ, થિયોરિટિકલ નહીં, એટલે તમને એનું કન્વિન્સ થાય એવા, ઓનલી નોટ આન્સર, તમે પ્રશ્ન પૂછો મેં જવાબ આપ્યો નહીં, તમને સમાધાન થવું જોઈએ, અને તે પણ લોજિકલ અને પ્રિન્સિપલી, નોટ વ્યૂ પોઈન્ટ, એ સિદ્ધાંત ક્યારે પછી બદલાશે નહીં। એક વસ્તુ અમે અનુભવ કરીએ છીએ બંને એઝ અ મધર ફાધર, કે કોઈ બી
અમે ડિસાઈડ કરીએ લાઈફની અંદર કે અમારે આ કરવું છે કે અમારે આ કરવું છે કે કોઈ વ્યવસ્થા અમારી નથી થતી કે કોઈ વ્યવસ્થા થઈ જાય છે સમથિંગ વોટેવર રોજના જીવન, તો જ્યારે કદાચ અમારી બંનેની સંમતિ હોય તો ઘણી વખત એવું થાય કે ભાઈ એ અમારી જે ડિસાઈડ કર્યું હોય એ ફેલ થાય, એ ફૂલફિલ ન થાય. પણ જ્યારે અમે ડોક્ટરના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી વિચારીએ તો એની જે કંઈ ઈચ્છા હોય તો ક્યારેક ફાઇનાન્શિયલ પ્રોબ્લેમ હોય તો બી સોલ્વ થઈ ગઈ હોય, ક્યારેક કોઈ બીજા યોગ ન હોય તો એ યોગ બધા બની જાય ઓટોમેટિકલી. તો આવા બધા નાના મોટા આપણે શું કહેવાય કે ચમત્કાર કે જે કાંઈ એમ ફીલ કરતા હોઈએ છીએ તો બધું ખરું હશે. એની પુણ્યને કારણે ભોગવવાનું એને છે, આપવાનું તમારે છે, પણ એની પુણ્ય છે એટલે જે માગે છે એને અનુરૂપ સંજોગો તમને મળી જાય છે અને તમે એને આપો છો. કેટલાક મા બાપ એવા છે છોકરાઓ માગે પણ સંજોગ જ ના આવે, એને આપવું એ છે પણ શું કરે, દેવ નો સર્કમસ્ટાન્સીસ. એટલે તો પાપ પુણ્યના ખેર છે, બીજું કશું નથી. એનું પુણ્ય હશે ત્યાં સુધી એ જે કહેશે બધું થઈ જશે. અને જ્યારે પુણ્ય પરવારશે એનું, અથવા જે વસ્તુમાં પુણ્ય નહીં હોય તો માગશે તોય ભેગું નહીં થાય. ક્યાં તમે આપી શકશો નહીં, ક્યાં તમે એમ કહેશો કે આ એને જરૂર નથી ભલે માગે, એવું બનશે. બધું જ બની શકે, પણ મેઇન વસ્તુ પાપ અને પુણ્યના ખેલ છે, બીજું કશું જ નથી સાહેબ. એટલે આ બધું જીવનમાં દરેકને નાના મોટા અનુભવ થતા હોય. એનીવે હવે આપણો સમય થયો છે તો નાની પ્રાર્થના પૂરી